everyone. I see Anushri Gupta, practicing chartered accountant from Kanpur. Firstly, want to welcome our members, speakers, CA Ajita Singh ji, CIRC Chairman, CA Atul Mehrotra sir, and other office bearers. Along with today's special invitee, CA Atul Agarwal ji from Noida, being Vice Chairman of CIRC during 21-22. So I would like to especially thank CA Atul sir for creating such a wow platform for women on Wednesday series and for motivating the women to come forward and have their own words. Thank you, sir. So without taking much time, I would like to welcome our chairman, CA Atul Mehrotra sir, to speak few words and initiate the webinar. Thank you, Anushri. Respected Atul Agarwal ji, my close friend, and my other regional council colleagues, Rajiv ji, Kishore Bhatia ji, Lokesh Maheshwari ji, Sharad Jain ji, my seniors and friends, colleagues. Very good afternoon to all of you. Tulika ji from Lucknow and Ajita ji, जो आज हमारी इस सेशन की एक्सपर्ट कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगी, तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अनुश्री जी ने बताया कि ये पहल हमारी पिछले साल हम लोगों ने शुरू करी थी। नीलेश गुप्ता जी, अतुल अग्रवाल जी और देवेंद्र सोमानी जी और मैं उस टीम का पार्ट थे। तो एक विचार मन में आया कि कुछ नया शुरू करते हैं। जो हमारी फीमेल मेंबर्स का परसेंटेज हमारे प्रोफेशन में बढ़ रहा है, बट वो थोड़ा हेजिटेट करती हैं और अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ थोड़ा बहुत प्रोफेशन में जो इन्वॉल्व रहती हैं, बट कैसे उनको आगे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो ये डिसाइड किया कि एक उनके लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें कि जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, जो हमारे यंग मेंबर्स हैं, जिस तरह से भी पार्टिसिपेट करना चाहें, देन वी डिजाइन दिस प्रोग्राम वुमेन ऑन वेडनेसडे and it is being appreciated from a lot of members, in addition to the female members, our seniors are also appreciating this, that you have done a good start for our just to promote our female members and the new talent. I can say the new talent, the hidden talent with the female members. So as far as CIRC is concerned, we are working for the benefits for our members as well as students. One of the most important discussion which I want to share with all of you. We had 2-3 virtual meetings with President, Vice President, and the other team members who are organizing the mega event, which is going to be held from 18th November to 21st November at Mumbai. Yesterday we had a meeting where Aniket Talati ji was also present, and the primarily and main question which is in our mind, that why our ICI is charging 15,000 plus GST as a registration fee. So I was surprised to know yesterday itself that Aniket Talati ji told me that the Geo Trade कन्वेंशनल सेंटर जिसमें हमारा प्रोग्राम हो रहा है, वो एशिया का क्या बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप मोस्ट कन्वेंशन सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एंड द कॉस्ट पर पर्सन फॉर 4 full days is more than the 15,000 rupees which our ICI is charging from domestic members. So I was really, though I am promoting this event from last 2 months, but yesterday मेरे अंदर और confidence बढ़ गया. And we are not talking about the other arrangements, the traveling and the cost of the speakers, and the full 4 days all meals, and 2 days mega social entertainment is also there. There may be some big celebrities as well. So I think it will be a great opportunity for all of us. And I personally request, because the members from entire world are joining us, and
what will be the main, maybe the main focus of the entire professionals from different places, that where we are today, what is the changes which are expected by our profession globally, and how we can uh, uh, create a network of the professionals. People are coming from South Africa, people are coming from New Zealand, Australia, entire UAE and other countries as well. So it will be a great opportunity. जैसे हम लोग अपने फैमिली के साथ कभी ट्रिप पे जाते हैं, एक RRC हम लोग अरेंज करते हैं, ऐसे ही मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो लोग जाएंगे वो जरूर फील कर पाएंगे और अपने दोस्तों को आके बता पाएंगे. Though there is a option of virtual registration as well, but as far as physical registration is concerned, physical presence is there, I think it will be more effective and beneficial for all of us. So this is the only announcement which I wanted to share with you with my full confidence that ये आप सब लोग इसको प्लान करिए. अभी 15 अगस्त तक कुछ अर्ली बर्ड का स्कीम भी है और बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हैं, रेजिडेंस के भी, वो सब चीजें ओपन हैं. किसी को भी कोई सपोर्ट चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर. अतुल भाई इज आल्सो देयर and we will be managing if anyone needs any support in this matter. So with these words, I am very much thankful to Ajita ji, Anushri ji, Tulika ji, Atul bhai, because to manage a program, to form the team is very important, and we are trying to provide the best, one of the best to best faculties and the topics for our members, so that अभी क्या हो रहा था, देखिए कोविड पीरियड में अभी आपने जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के जो रिटर्न भरे गए और 21-22 के जो रिटर्न आइडिया जा रहे हैं, आप देखो उसमें लॉट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स वेयर ओपन. क्या हुआ, उस बीच में आदमी घर में बैठा था, जो भी टाइम अपने घर में अपने सुबह शाम के अलावा बच रहा था तो टीवी में एंगेज था, कुछ प्रोग्राम्स देख रहा था, न्यूज, इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड न्यूज देख रहा था. तो बहुत सारे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो ठीक से समझ नहीं पाते थे कि यार ये शेयर मार्केट में कैसे एंट्री लेंगे, म्यूचुअल फंड में कैसे एंट्री लेंगे, SIP कैसे शुरू करेंगे, किस सेक्टर में जाएंगे, कितने उसमें वेरिएंट हैं, कितने उसमें ऑप्शंस हैं, एंड as far as taxation is concerned, क्या उसमें टैक्स लायबिलिटी उस पे आती है, कैसे उसका अकाउंटिंग होती है, कैसे उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, NAV से रिलेटेड बहुत सारे सवाल, और स्विच कैसे होता है, ऑप्शंस कैसे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों ने इस कोविड पीरियड में एंट्री तो लिया है, लेकिन उनको अभी बहुत मुझे भी सीखने की जरूरत है. और अजिता जी इज एक्सपर्ट, वो आज हमको बताएंगी अपने एक्सपर्ट नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, कि क्या है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, वेदर वी शुड बी ए इन्वेस्टर और ट्रेडर, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हिच वी शुड टेक केयर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितनी बास्केट होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की. लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर इन आवर माइंड्स. So he will be sharing his experience. Before inviting and handing over to Anushree ji, one request is there. I requested Atul Agarwal ji to share his few views and expert knowledge regarding this. So I request Atul Agarwal ji, please share few words with our members. Over to Atul Agarwal ji. Thank you so much, Chairman CA Atul Malhotra ji, Chairman CARC from Kanpur, respected CA Ajita Singh ji, Speaker of the today's session, CA Anushri Gupta ji, Tulika ji, Regional Council colleagues present in this particular program, and the attendees who are attending this program. I'm really thankful to CIRC. Special thanks to CA Atul Malhotra ji, who is continuing with this program which we started last year. And the idea was like, yes, as the women members are mostly, even if they are the chartered accountants, they are not trying to become a driver. They are trying to be a co-passenger. So the idea was like they should be driver and they should sit on the front seat instead of sitting on the back seat. And this was the whole idea. And during the discussion with the members, most of the time we
came to know that the women members are not participating mainly into the practice, or if they are into the job, then also most of them are not willing to become the senior or a leader. So the idea is they should come forward and they should be a leader in the profession. And as of now, I believe the percentage is almost 30% women members are there in the profession. And while the percentage is 30%, then we should come forward and we should take a baton as a woman member, not only in India, but outside India. What the idea is, we should be a motivator for the women members who are getting married, and after marriage, they are relocating from our country, they are going abroad, where the spouse is not a chartered accountant, where the spouse is an engineer, where the spouse is a doctor. In such case, the women members, they are feeling like what to do and they are not doing anything, or they are sitting ideal. So the point is, while they become chartered accountant, while they pass this, the toughest course of the world, and then after that, if they are sitting ideal, then we as a part of the institution, we are wasting our talent, which is actually is there. So keeping in view that, we started this series. As far as the topic, today's topic is concerned, investment advisory related with the stocks, mutual funds, and other trading methodology. Definitely during the COVID period, we have learned a lot how to invest and where to invest, but still lot of intricacies are there. And for becoming a portfolio manager, there are two different things. One, becoming an investor, and another is becoming a portfolio manager. So my idea is, yes, we all are the investors, but at the same time, we all must be a portfolio manager. And for becoming a portfolio manager, lots of intricacies are there. We have to pass one exam, and that exam is being organized by NISM. And once you pass that exam, then only you can become a portfolio manager. So all these intricacies, Ajita ji is going to discuss with all of us. Apart from that, yes, she may be going to tell us what all basics are there while we are entering into the share market, what all basics must be there, whether we should go for the equity market, whether we should go for mutual fund or F&O, or maybe with the derivatives and all. So important is how we are planning and how we are executing the transaction. Again, we may be a long-term investor, or we can suggest the client that you should go for a long-term investment, or a short-term investment may also be there. So all these intricacies are going to be discussed by Ajita ji. She has shared her PowerPoint presentation yesterday in the late night with me, and I have gone through with that PowerPoint presentation, and I'm sure you all must like that PowerPoint presentation. And we wish that in future also we will be having more and more detailed session from Ajita ji, where we would be discussing more, because today may be the preliminary session. So for advanced study about the share market, we would be having more sessions from the Ajita ji side. So without taking much of the time, I once again congratulate CIRC for organizing such a wonderful program. And I would like to request to all the attendees to kindly join all the programs being organized by CIRC. As far as World Congress is concerned, it is going to be a very wonderful program. And one thing I would like to add here, you may feel difficulty while finding out the accommodation there, because most of the accommodation nearby this Geo World Trade Centers are fully booked, and the costs are going up like anything. So you can go and opt for Airbnb kind of accommodation nearby the location. And Airbnb kind of location, while you go for Airbnb kind of location, then you can see if the host is the super host, you can go without any fear, and you will be getting a home kind of feel there, and you would be able to manage the things within a budget. Because at present, while I was going through for my booking, and I found that the hotel rates have gone up like anything. So whosoever is willing to go for World Congress, you can make your arrangement well in advance, especially for stay arrangement. That is more important. So with these words, I once again would like to welcome Ajita ji for the session. And without taking much of the time, would like to say thanks to Atul Malhotra ji for inviting me. Over to Anushree ji for further proceedings of the program. Thank you very much, sir. Thank you for the motivation, sir. Now I would proudly like to invite our speaker, CA Ajita ma'am. She is currently indulged in practice related with detailed fundamental and technical research on a stock, mutual fund, other financial instruments, and providing the portfolio management consultancy to HNI and retail investors. Overall experience of her in capital market is nearly around 4.5 years. So I welcome Ajita ji for deliberation in the most required and my favorite topic, as I am also very much involved in share market and derivatives.
and the topic is, as we all know, on investment advisory related with stock, mutual fund, and other trading methodology. So, hello, Ajita ji. Now you can start with the deliberation. Over to Ajita ji. Thank you so much. I welcome you all and thank you so much for joining with us today. I would like to thank Atul sir for giving me this opportunity to speak on the topic, and for initiating a special thank to him for initiating this drive, Women on Wednesday, which is wow, because that enable us as a female fraternity जो भी है हमारी to express our views, और जो भी हम कर रहे हैं उसको हम और अच्छे से कर पाएं, and opportunity to speak in front of you all and grow better in a way or more professionally. So thank you so much for driving this initiative, and I would like to be a part of this drive for the longer period. So please, I would request all the women CAs to be a part of this program. Thank you so much. So now, जैसा कि आज का टॉपिक है investment advisory related with stocks, mutual fund, and what trading methodologies are available in the market, basically in the stock market. When I say market, please do connect with it's a stock market. So let me first go with the basic thing कि हमारे पास options क्या क्या हैं for the investment. So you can go for risk-free investment, where it is something like आप FDs में और guaranteed plan में invest कर सकते हैं. Second, आपके पास बहुत अच्छा option होता है mutual funds का, कि आप म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी वर्किंग, थोड़े से अपने प्रोफेशनल जजमेंट्स को लगा के आप म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं. ये बेसिकली आप इसको इस तरह से समझिए कि इट्स लाइक अ प्लांट से ट्री बनने तक का सफर. अगर आपके पास स्टार्टिंग में थोड़ी सी सेविंग है और आप बहुत रिस्क एपेटाइट नहीं है आपका, देन यू कैन गो फॉर रिस्क फ्री. द सेकेंड स्टेप, आपके पास थोड़ी सी नॉलेज बढ़ती है और आप थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं, देन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन विच इज म्यूचुअल फंड. थोड़े से और आपकी सेविंग्स बढ़ती है, आप प्रोफेशनली और ग्रो करते हैं और आपका एक्सपेंशन करने का प्लान होता है, यू कैन पिक फॉर द स्टॉक. उसके ऊपर का भी एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको बोलते हैं PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जहां पे एडवांस लेवल की एक्सपर्टीज को यूज करके आपका पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है. लाइक अतुल सर सेड कि दुबई में क्या कल्चर है PMS का, ये CAs किस तरह से प्रैक्टिस को ऑप्ट कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ PMS. उससे भी एक एडवांस लेवल का वर्जन है जिसको हम AIF में AIF बोलते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना. वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता, बिकॉज दैट रिक्वायर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 1 CR. वहां से उसकी वो स्टार्टिंग होती है. सो दिस इज व्हाट द लेआउट, कि आप कैसे फ्लो विद द फ्लो आप एक इन्वेस्टमेंट पूरा जो कंप्लीट जर्नी है फ्रॉम द रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स टू द म्यूचुअल फंड टू इक्विटी, देन PMS एंड देन AIF. Now I'm sharing my screen. So yeah, as we discussed, what is the topic for the today, and this is for the Women's on Wednesday series. You all have heard about me. So this is now the highlights. आज हम बात क्या करेंगे? So first of all, this is first point is investment opportunity in capital market क्या होने वाली हैं. सेकेंड, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो ये ऑप्शन है ये चूज क्यों करना चाहिए? क्योंकि बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू ग्रो देयर मनी. तो ऐसे क्या इनेबल्स हैं जो स्टॉक मार्केट आपको प्रोवाइड करता है जो अल्टीमेटली बिकम वेरी लुक्रेटिव फैक्टर टू इन्वेस्ट हियर. नेक्स्ट इज की फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे. यू माइट नो अबाउट द स्टॉक मार्केट और यू माइट नॉट नो, बट इसमें डिस्कस करेंगे. और किस किस तरीके से आपकी प्रॉफिट बुकिंग का एक क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे जो ट्रेडिंग के हैं. एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स
के बारे में, और ये बेसिकली किस तरह से काम करते हैं, इनका क्या सेटअप होता है, कैसे सेलेक्ट करते हैं, फंड मैनेजर क्या काम करते हैं, एएमसीज एंड ऑल के बारे में डेफिनेटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और यू कैन से इट्स अ वेरी लार्ज एक्सरसाइज यू नीड टू परफॉर्म बिफोर गोइंग डायरेक्टली इनटू द इक्विटी। और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, उनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे, क्या है क्या नहीं है। The next would be mutual fund का selection, style of investing आपकी, because that depend on particular person to person कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपका गोल क्या रहने वाला है, आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। These are the multiple things you should consider before going for the investment. And second, हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे स्टॉक्स पे कि हम उसको कैसे इवेलुएट करें, कौन सी कंपनी अच्छी होगी, कौन सी कंपनी नहीं अच्छी होगी, जस्ट टू गिव अ ब्रीफ अबाउट हाउ टू पिक एनी स्क्रिप्ट बिफोर फाइनलाइजिंग कि हाँ ठीक है हमें अपना जो हार्ड अर्न मनी है उसको पार्क करना है या नहीं करना। सेकेंड, सोर्सेज, बिकॉज देयर आर न्यूमरस कंपनीज, हर एक की बैलेंस शीट को हम स्टडी नहीं कर सकते इन फिजिकल फॉर्म, बट वो कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, अपने रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रख सकते हैं, या अगर क्लाइंट्स के साथ वो प्रेजेंटेशन देनी है वो डेटा आप एक्सट्रैक्ट करके अपडेटेड डेटा वो आप कहाँ से ले सकते हो, दैट आई ब्रीफ यू कि वो क्या है। द नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन कोर्सेज, बहुत सारे हैं कि एनएससी एंड एनआईएसएम ऑफर करते हैं, ये डिफरेंट बॉडीज से एफिलिएटेड हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में क्रक्स में बात कर लेंगे, डिटेल में नेक्स्ट डेफिनेटली आई टेल यू अबाउट व्हाट इज दिस, बट आज सिर्फ क्रक्स में क्या नाम है, क्या फी है, एलिजिबिलिटी एंड ऑल की बात करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी आर हाउ टू डील विथ फेयर ऑफ लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये इस फेयर से मैनेज कैसे किया जाए। ऑल्दो आपको इस प्रेजेंटेशन में कोई स्लाइड नहीं मिलेगी इसकी, बट इसको मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी, इससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और आई वुड से कि इससे आप कैसे बेटर वे में प्लान कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। तो ये जो फियर ऑफ लूजिंग मनी है ये कम किया जा सकता है। आई वुड नॉट से कि बिल्कुल आप इसको इरेज कर सकते हैं इस डर को, बट हाँ इसको प्रॉपरली अगर मैनेज किया जाए तो ये डेफिनेटली आपके लिए फेवरेबल ही पॉइंट होगा। सो दिस इज दिस। सेकंड, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो कैपिटल मार्केट में हैं, वो क्या क्या हैं। आपकी डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग कि डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आप रिलायंस, एचडीएफसी ऐसे स्टॉक्स में आप जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड में कई कैटेगरी होती हैं। बेसिकली आप दो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए मेंशन करी हैं बिकॉज जिन्हें रिस्क बिल्कुल भी बेयर नहीं करना, दे कैन गो फॉर द डेट म्यूचुअल फंड, और जो इक्विटी रिस्क के साथ अपना कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, ग्रोथ के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि एक पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो, योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक डेट में होना चाहिए, बिकॉज एक गारंटीड रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में पार्क्ड होना ही चाहिए। द नेक्स्ट इज AIF. AIF is again alternative investment funds, जो जैसा कि मैं बता रही थी, इसको डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट। मैं ब्रीफ में बताऊंगी कि AIFs में कैसे क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या रिटर्न का पैरामीटर है यहाँ पे, और ये ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, विच इज अराउंड 1 CR। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर इसके लिए नहीं होता बिकॉज वो दे कैन नॉट ऑप्ट फॉर द AIFs। सेकेंड, आप अगर बिल्कुल गारंटीड में जाना चाहें, आई एम श्योर आप सब लोग जानते होंगे गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है, आप RBI टैक्सेबल बॉन्ड्स के लिए जा सकते हैं। अदर जो फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट्स में है, ये दीज आर द योर ऑप्शंस जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे ये डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई एम श्योर आप सबको इन सारी स्कीम्स के बारे में डेफिनेटली ही पता होगा। सो
प्लीज डू लेट मी नो अगर मैं कहीं पे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो या मैं कुछ भी गलत बताऊं तो प्लीज आप इंटरप्ट मी इन बिटवीन और मुझे बताइएगा कि क्या गलत है. So this is the thing कि why you should choose to invest in direct equity. So इसके लिए सबसे बेस्ट है, आप ये चार्ट को आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो आपका इन्फ्लेशन होता है, ये एवरेज, ये अराउंड हमने इंसेप्शन से डेटा निकाला हुआ है कि ऑन एन एवरेज आपका जो इन्फ्लेशन होता है वो क्या रेट है. उसके ऊपर ये जो बैंक एफडीज में जो जाना चाहते हैं, जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आपका क्या रेट प्रोवाइड कराता है, जो इंटरेस्ट रेट है. सेकंड, एफडी से बेटर भी ऑप्शन, और ये रेट्स जो मैंने निकाले हुए हैं सिंस इंसेप्शन से हैं इन चीजों के कि वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन, और यू कैन से इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन बेसिस पे मान के हमने ये निकाला है. थर्ड, आपका गोल्ड बॉन्ड, और अर्लियर इट वाज अ प्रैक्टिस कि हम एक फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को रखते थे, बट नाउ यू हैव द ऑप्शन कि आप उसको डीमैट में आप डायरेक्ट वहां पे थ्रू गोल्ड ईटीएफ आप बाय कर सकते हैं. आपको फिजिकली गोल्ड को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है सिक्योरिटी रीजन से, एंड बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आपके गोल्ड ईटीएफ्स बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट हैं. अब ऑल दीज ऑप्शंस, इक्विटी आप देख रहे हैं क्या ये रेट ऑफ रिटर्न आपको देता है. इक्विटी का ये इंसेप्शन से रेट लिया हुआ है मैंने, और ये ऑन एन एवरेज आपको 14% CAGR के अकॉर्डिंग रेट देता है. अब आप ये आप क्रॉस क्वेश्चन इसमें मुझे कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है. जो ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है कि आपका जो करंट ईयर में जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है इंडिया का, वो अराउंड 7% का रहा है, एंड ये रियल है, ये इन्फ्लेटेड एडजस्टेड नहीं है आपका. तो ये ये प्रीवियस डेटा से निकाला हुआ एक इवैल्यूएशन है कि जो जीडीपी का आपकी ग्रोथ होती है उससे आपका मोर देन 50% के अप्रॉक्स आपका स्टॉक मार्केट, या किसी भी ग्लोबली अगर बात करें तो हमारी 7 इंडेक्सेस हैं वर्ल्ड वाइड. अफ्रीकन मार्केट है, एशियन मार्केट है, आपकी यूरोपियन मार्केट है. इसी तरीके से हमारी 7 डिफरेंट इंडेक्सेस हैं वर्ल्ड वाइड लेवल की, जो कॉन्टिनेंट के बेसिस पे चलती है. उनका ऑन एन एवरेज ये रेट के हिसाब से आपका रिटर्न आता है. सो दिस इज द पैरामीटर जहां पे आपने देखा कि इक्विटी आपको ओवरऑल अच्छा रिटर्न जाती है. व्हेन आई एम सेइंग इक्विटी, इसमें आप सेकेंड लेवल पे आप म्यूचुअल फंड एंड ऑल भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, आई मीन दे हैव डायरेक्ट कोरिलेशन विद द स्टॉक मार्केट. The next is I was saying कि what is the fact about the stock market, और second slide would be of what ways to earn. This is for the first. अगर हम stock market की बात करते हैं तो there are around 15,000 plus companies listed on the stock market. Stock market means NSE and BSE पे listed हैं. Now, अगर हम सेकेंड पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिस इज हर स्टेट का अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है. यू माइट नो अबाउट दिस थिंग कि हर स्टेट का अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंज होता है, बट करेंटली सब इतने एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं. इसी वजह से शायद सबसे जो टॉप पे है वो NSE और BSE है. इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है. यू माइट से कि लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, ये सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली एक ये फैक्टर भी है. पर सेकंड फैक्टर ये है कि जो हमारा टेक्निकली लेवल पे वो इतना केपेबल प्लेटफॉर्म नहीं हर स्टेट नहीं करवा सकता है. इस वजह से इन सारे जो स्टेट ओन आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो बिल्कुल भी एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं. आई नो मच अबाउट द यूपीए स्टॉक एक्सचेंज, तो मैं आपको समझाती हूँ कि काम कैसे करता है. जो हमारा यूपी स्टॉक एक्सचेंज है वो जस्ट लाइक अदर स्टेट्स, ये आपका मेंबर बनता है NSE BSE का, और NSE BSE की बहुत एक ह्यूज अमाउंट की फी होती है जो फॉर एज अ मेंबर बनने के लिए हर स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ता है. तो यूपी स्टॉक एक्सचेंज जो है अपना एज अ मेंबर रजिस्टर्ड है एट दी NSE और BSE.
अब सेकंड पॉइंट ये है कि क्या जो ये HDFC सिक्योरिटीज हो गया, आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, IIFL हो गया, ये सारे जो स्टॉक, ये जो सारे ब्रोकर जिनको बोलते हैं, ये तो किसी स्टेट से एफिलिएटेड नहीं है या हैं, मतलब क्या है इनका सो एज आई सेड कि NSE एंड BSE की एक कॉर्पस अमाउंट होता है जो टू बिकम द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर NSE और BSE वो पे करनी पड़ती है। तो ये सारे जैसे IIFL हो गया, आपके मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये सारे के सारे लोगों ने डायरेक्ट मेंबर हैं एट दी NSE एंड द BSE। यूपीए स्टॉक एक्सचेंज में भी एज अ ब्रोकर ही रजिस्टर्ड है एट दी NSE। अब जो यूपीए स्टॉक एक्सचेंज फिर कौन से लोग रजिस्टर्ड होंगे, अब ये इसका क्या पर्पस है, अगर ये अभी भी ऑपरेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि अभी भी स्टेट वाइज बहुत छोटे प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं रिटेल में, लाइक अपने कानपुर की बात करें या नोएडा की बात करें या बाकी सेंट्रल या कहीं की भी किसी भी सिटीज की बात करें, यहाँ पे छोटे एज अ सब ब्रोकर एक फी पे करके वो सब ब्रोकर बन जाते हैं यूपीए स्टॉक एक्सचेंज और एनी अदर स्टेट स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद दे अल्टीमेटली बिकम दी पार्ट ऑफ NSE एंड BSE। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमारे जो स्टेट, आप सबने सुना होगा कि हर स्टेट का स्टॉक एक्सचेंज है वो इतना एक्टिवली काम क्यों नहीं कर रहा, तो आई होप ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर पाई होंगी। सेकंड, सेबी इज द प्राइमरीली बॉडी जो रेगुलेट करती है हमारा जो फंड को हमारा मैनेज करती है, किसी भी तरह का कोई हर्डल नहीं आना चाहिए, क्लियर प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो इन सब चीजों को टेक केयर करने के लिए सेबी इज द अपेक्स बॉडी जो ये मैनेज करती है। मैडम जो मधुबी पुरी बुच हैं, ये करंटली इन्होंने अभी चेयर संभाली है, शी इज सर्विंग एज अ सेबी चेयरमैन, और ये मैम IIM से बिलोंग करती हैं। एंड द नेक्स्ट नेम इज आशीष कुमार चौहान जी, ये सर NSE के चेयरमैन है, इन्होंने भी रिसेंटली ही ज्वाइन किया हुआ है, and he belongs to IIT and IIM. Sorry. Now, next is what are the ways to earn the profit? अब ये सबसे important point है कि हमारा मोटिव क्या है, हम पैसे ये अब डायरेक्ट इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। लाइक इफ यू आर, these are the alternatives. Let's say long term investing की जब हम बात कर रहे होते हैं, which means कि you are intended to stay invested for more than 1 or 2 year. This is for 1 or 2 year. Second is short term. It means कि आपने सिक्योरिटी और विदिन 1 year आप इसको sort out कर दें। काली पैंट हमें रखती थी, हमको ये नहीं पता था यहाँ की कि उधर की है, लेकिन वो पैंट हम छूते थे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में आपका इंटेंशन क्या होता है, किसी भी सिक्योरिटी को या म्यूचुअल फंड को आपने खरीदा और विद इन 1 year के टाइम फ्रेम पे उसको बेच दिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पोजिशनल इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? पोजिशनल इन्वेस्टिंग आपकी वो होती है लाइक इफ यू वांट टू अर्न अराउंड ओनली 10 to 15% थ्रू डायरेक्ट इक्विटी। कि लेट से आपने कोई रिलायंस का स्टॉक, लेट से कोई स्टॉक रिलायंस का पिक किया कि हमने रिलायंस खरीद लिया है और इसको हमने सिर्फ 3 to 4 month रखा और उसके बाद इसमें मुझे 10 से 15% का प्रॉफिट आया, हमने इसको सोल्ड आउट कर दिया। ये हो गया कि आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे, दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स जहां पे आप यहाँ पे ये इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसको बेसिकली कोर डिफाइंड वे में अगर बात करें तो ये होता है कि आप 3 to 4 month के लिए सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं। स्विंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप सिक्योरिटीज को सिर्फ 3 to 4 और 1 to 2 weeks तक ही रखना प्रेफर करते हैं।
कोई आपके पास कोई ऐसी न्यूज आई, कुछ अच्छा रिजल्ट आया या कुछ ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन हो जिसकी वजह से आपको लगा कि वो स्टॉक्स में मूव आ सकता है, तो आपने सिर्फ 1-1.5 हफ्ते के लिए खरीदा, उससे जो भी आपका 8-10-15% उस बीच में कोई भी स्पाइक आता है, आपको वो स्पाइक आपने बुक किया और आप निकल गए उस ट्रेड से। इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑन, आई मीन आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई करना चाहता है तो वो प्योर टेक्निकल के बेसिस पे करनी चाहिए इसको, बिकॉज यहाँ पे आप सेम डे सिक्योरिटी को खरीदते हैं और सेम डे ही इसको सोल्ड आउट कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ भी गेन आ सकता है एंड यू कैन मे अकर अ लॉस आल्सो। सो दिस इज व्हाट द इंट्राडे। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं जो आपको अपने टारगेट्स के हिसाब से सेट करने चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना। नाउ सेकंड इज ट्रेडिंग टेक्निक्स की, जो मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट में सब बोलते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेड होता है, ये ट्रेड, वो थोड़ा सा एम्बिगियस था कि क्या चीजें कैसे हैं। यहाँ पे क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताती हूँ। स्टॉक मार्केट में 2 सेगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ये आपका कैश एंड इसको हम डेरिवेटिव सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो डेरिवेटिव सेगमेंट है आपका, यहाँ पे जो दिस रिक्वायर ह्यूज और यू कैन से गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे चीजें आप लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं, जस्ट लाइक फॉर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं। ये सिर्फ आपको यहाँ पे 2 काम आएंगी। पर जो डेरिवेटिव हैं ये होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली। अब कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, फ्यूचर। ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है ये आपकी स्टॉक्स पे होती है। अब स्टॉक्स में क्या होता है, ये होता है आपकी स्पेकुलेशन के बेसिस पे। लेट्स से आपने कुछ आपका कन्विक्शन है किसी भी स्टॉक के लिए कि लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं हम RIL का ही, रिलायंस का ही, कि रिलायंस में बहुत अच्छा मूव आएगा, बट यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट अराउंड 10 लाख रुपए, बिकॉज यहाँ पे आपको लॉट साइज चलता है। लॉट साइज, ये लॉट साइज में आपकी बाइंग होती है और आपको उसका प्रीमियम पे करना होता है। वो प्रीमियम पे करके वो आप लॉट साइज में कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं, और ये लॉट साइज हो सकता है 100 स्टॉक्स का एक लॉट बने, 1 लॉट। तो जो आप 10 लाख रुपए पे जो गेन कमाते, वो अभी अगर आप चाहते हो, आपका प्रेडिक्शन या आपका कन्विक्शन कह रहा है कि ये रिलायंस का स्टॉक 10% की स्पाइक देगा और आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं है कि आप इसकी पूरी की पूरी कैश में बाइंग करो, पर 1 लाख रुपए हैं, तो आप उस 1 लाख रुपए से ये लॉट बाय करके ये 10 लाख के बराबर का, 10 लाख का, लेट्स से अगर रिलायंस 10% का आपका प्रेडिक्टेड है टारगेट, तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपए, और आप सिर्फ यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके वो 1 लाख का प्रॉफिट कमा सकते हैं इफ योर ट्रेड गोज ऑन द सेम डायरेक्शन विच यू हैव स्पेकुलेटेड और इट गोज ऑन द डायरेक्ट साइड। तो ये आपका, दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर ट्रेडिंग। ये सिर्फ आपकी कैश में होती है। नाउ अब बात करते हैं करेंसी ट्रेड की। करेंसी ट्रेड में आप रुपी, जो अपनी करेंसी है, करेंसी पे ट्रेड किया जाता है। करेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसीज पे आप आपका स्पेकुलेटेड जो भी मूवमेंट होता है फॉरेन करेंसी पे, आप यहाँ पे वो प्रेडिक्ट करते हैं। कमोडिटीज जो बेसिकली ये एक ट्रेडिंग का बहुत डिफरेंट और बहुत अलग सेगमेंट है, हर कोई नहीं करता है, बिकॉज वो आपको कमोडिटीज थ्रू MCX ट्रेड होती हैं। तो आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल ऑन दिस, ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है। अजिता जी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, साथ में अभी आया है प्रथम अग्रवाल जी का।
how margins are decided in derivative market? ओके, सो अगर हम मैं आपको सर ये मैं आपको नीचे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको अच्छे से ठीक है, आगे ले elaborate लीजिएगा। करूंगी। ठीक है, डन, ठीक ठीक, प्रोसीड। I'm coming directly into the option trading only. ये आपका ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये देखिए इसमें होता क्या है, अब मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ आप इसमें कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, आपने किसी भी स्टॉक को उठाया और आपने किसी इंडेक्स को पिक किया। अभी मैं आपको इंडेक्स का सॉरी चलिए मैं आपको इसी का दिखाती हूँ, आपको स्टॉक की है। हम अगेन रिलायंस की ही बात करते हैं कि रिलायंस का लेट से हमारा प्रेडिक्टेड अगेन सेम वही है कि ये 10% का मूव देगा अपसाइड। तो अब हमारी है ऑप्शन में हम ये कॉल के लिए कि हम कॉल की बाइंग कर सकते हैं जिसको हम CE से डिनोट करते हैं। ये कॉल ऑप्शन। अब जैसा कि अभी कॉल ऑप्शन के अंदर है कि हमने रिलायंस को प्रेडिक्ट किया, लेट्स से अभी आज की डेट में ये चल रहा है अराउंड 2540 लेट्स से। अब इस प्राइस पे हम कैश में बाइंग नहीं कर रहे हैं, हम इसके अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें हम ये बाइंग नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर का भी नहीं उठा रहे हैं। हमारे पास ये 1 लाख रुपए जो हमने यहाँ पे आपको बोला था कि अगर आप 1 लाख का कमाना चाहो यहाँ पे और आप कैश में ना उठा के लॉट, आपने यहाँ के लॉट उठाई है। अब आपके पास 1 लाख का भी अमाउंट नहीं है पर आपको वही 10% 10 इतने ह्यूज अमाउंट पे 10% रिटर्न आपको आना चाहिए, पर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है कि आप उससे 1 लाख रुपए कमा सको। उससे भी छोटा अमाउंट है। इसमें क्या होता है, आपको जो ड्यूरेशन मिल जाता है वो आप होल्ड कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बेसिकली वो फिर भी आप 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक का आप होल्ड कर सकते हो। कॉल ऑप्शन में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है और आपकी इस लिक्विडिटी की वजह से जब भी जो सर ने भी क्वेश्चन पूछा कि आप इसमें प्रीमियम कैसे डिसाइड करते हैं। प्रीमियम बेसिकली डिसाइड होता है आपका लिक्विडिटी के बेसिस पे। नाउ लेट्स से रिलायंस आज ट्रेड कर रहा है 2540 पे और हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी आप मान के चल लीजिए अगस्त की एक्सपायरी पे ही है कि अगस्त एक्सपायरी की हम कोई भी कॉल पिक करते हैं। कॉल ऑप्शन में हमारी अब थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देती हूँ आपको। ये हमारी महीने में 1 मंथ में 4 एक्सपायरीज लगती हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में। मंथ के हर थर्सडे को वीक के हर थर्सडे को आपकी एक्सपायरी होती है। मंथ एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। सो दीज आर द एक्सपायरी। अब इस एक्सपायरी का क्या मतलब है? एक्सपायरी का मतलब है कि जैसे आपने रिलायंस की आपने अगस्त की एक्सपायरी का लॉट बाय किया है लेट्स से 5,000 रुपए का, और अगर आपका ये टारगेट, अगर आपका ये जो रिलायंस 10% का हाइक अगर दे रहा है तो मतलब 250 बढ़ के ये अराउंड आपका 2750 के अप्रॉक्स अगर ये नहीं जाता है या इससे 2-4% ही ऊपर आता है तो इस पे आपको गेन जो आएगा वो बहुत स्लोली आएगा। बट इफ इन केस ये नेगेटिवली मूव करता है, लाइक अगर ये करेक्शन में आने वाला होता है, ये नीचे चला जाए, ये जो हर एक्सपायरी अगर आपने अगस्त एक्सपायरी ली है और बाई चांस अगर आपने अपनी कॉल या अपनी ट्रेड को नहीं काटा, क्योंकि अगर आप नहीं जाता हुआ देख रहे हैं कि 2750 या 2600 भी नहीं गया पर ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है, लेट से 2500 हो गया, फिर 2500 से नीचे और आ गया 2450 हो गया, तो जो ये डिके लगेगा जैसे जैसे आप अगस्त की लास्ट एक्सपायरी अराउंड जो कि 27-28 को पड़ रही है इस बार, यहां तक आते आते अगर आपका ये प्राइस में ऊपर मूवमेंट नहीं किया है और आपने ये 2750 का टारगेट मान के चल रहे हो कि यहाँ तक अगस्त में पहुंचेगा ही पहुंचेगा इस डेट में, पर अगर नहीं पहुंचा तो ये जो 5,000 का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ये आपका खत्म होता रहेगा। और ये खत्म होगा क्योंकि आपका डिके, एक तो टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे,
टाइम वैल्यू मनी का, ये डिके करेगा। एंड सेकेंड थिंग कि आपका प्राइस में जो डाउनसाइड मूवमेंट आ रहा है उसका भी एडजस्टमेंट होगा। तो ये आपका लेट से अगर क्लोज होता है 26 और 27 को, अगर आपका ये 2524 पे आज जब आपने कॉल ली तब ट्रेड कर रहा था, टारगेट आपने ये सोचा था, पर 26 को ये अगर 2500 पे बंद हुआ, यहां से भी 40 पॉइंट नीचे, ये आपका जीरो हो जाएगा। ये आपका जीरो मतलब आपका पैसा पूरा खत्म। बट अगर यही सेम चीज अगर जो आपने प्रेडिक्ट करी है कि 26 से 27 अगस्त को रिलायंस का प्राइस ये होगा, तो आपका यही कितनी तेजी से आपका वो मूव किया, अगर पूरा महीना लेके हुआ है तो हो सकता है ये 5 का आपको 10,000 15,000 ऐसे करके दे जाए। अब बात करते हैं प्रीमियम। अब ये 10,000 होगा या 15,000 होगा, दैट कम्स थ्रू द ऑप्शन प्रीमियम। जो अभी आपने क्वेरी पूछी कि ऑप्शन प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है। अब ऑप्शन प्रीमियम जो डिसाइड करने का सबसे कोर तरीका है वो है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी को हम डिनोट कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट से। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है आपका? ये होता है आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रिडिक्शन है कि ये सब जाएगा, ये जो अगले महीने की ये अगस्त की एक्सपायरी तक रिलायंस आपका 27-50 जाएगा, ये आपने प्रेडिक्ट किया। और आप जैसे कितने लोग हैं पूरे ओवरऑल इस सेटअप के साथ कि रिलायंस अगस्त की एक्सपायरी पे 27-50 ही जाएगा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी तेजी से आपका ये ऑप्शन प्रीमियम खींच के ऊपर ऊपर लेते जाएंगे। यही रीजन है, बहुत तेजी से मूव आता है और बहुत तेजी से पैसा जब मार्केट में इस ट्रेड के लिए आएगा, आपकी अगस्त एक्सपायरी की 2750 स्ट्राइक के लिए जब प्राइस आएगा, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है जो 10 रुपए पे चल रहा हो वो बढ़ के 50 रुपए 60 रुपए कुछ भी हो जाए। इसलिए कहते हैं कि बहुत मल्टीपल, मतलब एक एक दिन में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आप 1000% तक का भी रिटर्न कमा सकते हो। 200, 400, 500% तो आपको डेली का मूवमेंट दिखता है कि कोई स्ट्राइक प्राइस आपकी 10 से 20 हो गई, 10 वाली 30 की हो गई, 10 वाली 40 की हो गई। तो ये इस वजह से होता है। और जब एक मार्केट ट्रेंड फॉलो कर रही होती है तो सब कुछ ही भाग रहा होता है, तो ये प्रीमियम उस वक्त सबसे अच्छा टाइम होता है जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं यहाँ पे, जिनको हम ऑप्शन ट्रेडर बोलते हैं। इसमें पैसा कम इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत बड़ा रिटर्न कमाना वो यहाँ से कमा सकते हैं। बट ये आपका एक ट्रेंड फॉलो करता हुआ मार्केट दिखे आपको, या फिर आप छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे बड़ा गेन कमा सकते हैं। बट दिस रिक्वायर अ वेरी गुड लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड आपका टेक्निकली, आई एम श्योर कि टेक्निकल चार्ट्स को देखना, ये सारी चीजें को बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप मूव्स एंड ये सारी चीजें डिटरमाइन कर सको। तो ही आपकी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप बहुत अच्छा रिटर्न इसमें से कमा सकते हो। एनी क्वेरीज ऑन दिस, या कुछ और मैं बताऊं, या मैं आपको कुछ ना समझा पाई हूँ इसमें, तो यू कैन आस्क मी later on, but now I'm continuing with the other slide. So these are the options जो मोटा मोटा आपको क्लियर पिक्चर दे देगी कि क्या है क्या नहीं है आपका। Now come back to the mutual funds. अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं, बहुत म्यूचुअल फंड बाय करना है, ठीक है, म्यूचुअल फंड सही है, ये भी ठीक है, म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट क्या डू यू हैव दिस नॉलेज कि म्यूचुअल फंड का जो कंपोजिशन है ये कैसे करते हैं, कैसे पैसा लेते हैं, कैसे क्या आपकी एनएवी कैसे डिसाइड होती है, और प्रॉफिट बुकिंग का क्या है क्राइटेरिया, ये सारी चीजें। तो हम इसमें अभी फटाफट से ये डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज वी हैव लॉट थिंग्स टू डिस्कस। ये हम जल्दी से बताते हैं क्या है अभी आपको। सी म्यूचुअल फंड ओवरऑल इस सेगमेंट की बात करें, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल, जस्ट लाइक सेबी
आपकी अपेक्स बॉडी है फॉर द NSE एंड BSE। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड की बॉडी का नाम है एमफी। ऑल्दो अल्टीमेट बॉडी आपकी सेबी ही है, बट उसका एक सेपरेट विंग है जो एमफी के नाम से है, जो होल सोल सिर्फ म्यूचुअल फंड को टैकल करता है। इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी ओवरऑल म्यूचुअल फंड का डेटा होता है वो आपको यहाँ से, वो आपको इस साइट के थ्रू मिल जाएगा। तो if whether you are interested कि who is the, I mean how many AMCs are there, what sort of investment mutual fund schemes are there, classification क्या है उनका, return wise क्या है, fund managers की डिटेलिंग, डेली जो आपकी NAVs अपडेट होती हैं, ये सारी आपके थ्रू दिस साइट ही होती है। यहाँ पे ही आपको अपडेट करना होता है। जितने भी अराउंड 5 से 7 हजार की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उन सबका जो NAV कंप्यूटेशन होता है रूल के हिसाब से हर दिन शाम को, जितने भी वर्किंग डेज होते हैं, शाम को 8 बजे आपकी NAV जो आज की है वो आपकी एमफी की साइट पे आपको अपडेट करनी ही करनी है, सो दैट नेक्स्ट डे उस प्राइस से वो ट्रेड करना शुरू करे। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोज एंडेड फंड, बिकॉज यू नो कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, वो आपका ट्रेडेबल थ्रू एक्सचेंज है, तो वहां पे आप एक दिन पहले कुछ प्राइस डिसाइडेड नहीं होता। दिस 8 PM थिंग इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द क्लोज एंडेड स्कीम्स। जो अब ये मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि क्लोज एंडेड में क्या क्या चीजें हैं, जिससे लॉक इन होता है इसमें। आप इंश्योरेंस में नॉन यूलिप जो फंड्स होते हैं बेसिकली ये उस कैटेगरीज में आते हैं। अगेन मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, हम यहाँ पे डायरेक्ट इक्विटी एंड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। सो अब AMCs की बात करते हैं कि ये जो सेगमेंट है म्यूचुअल फंड का कितना बड़ा है और AMCs कितनी है। So there are around 90, 89 is exact number, but 90 approx AMCs हैं। AMCs क्या मतलब हुआ? AMCs का मतलब ये हुआ असेट मैनेजमेंट कंपनी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं जाती हूँ, आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। HDFC, SBI, PGIM, Quant, Nippon. These groups are the Mirai. So these are the AMCs. इन AMCs के अंदर बहुत सारा ह्यूज बल्क में फंड होता है, ये आपके 90s हैं। इनके अंदर दे प्रोवाइड यू न्यूमरस म्यूचुअल फंड की स्कीम्स जिसमें पैसा आप इन्वेस्ट करते हो। अगेन ये बहुत ही कैटेगराइज्ड उसमें होता है कि लार्ज कैप होगा, स्मॉल कैप होगा, फ्लेक्सी होगा, मल्टी होगा, किस तरीके से होगा वो एक अलग चीज है पूरी। सो दिस इज बेसिकली ये AMCs हो गई आपकी। हर AMC की जो ये मैंने ये स्कीम बताई, हर म्यूचुअल फंड की स्कीम में का एक फंड मैनेजर होता है जो कि ये है, ये फंड मैनेजर। अभी फंड मैनेजर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये बेसिकली बहुत ही सेम स्ट्रीम में जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है क्वालिफिकेशन वाइज, वो फंड मैनेज करते हैं। ही ओनली डिसाइड्स व्हाट विल बी द कंपोजिशन फॉर द म्यूचुअल फंड। क्या मतलब हुआ इस बात का कि एक म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें कि एक म्यूचुअल फंड लेट्स से आपका एक्सिस फोकस्ड, आई एम श्योर आप सबने इस फंड का नाम डेफिनेटली सुना होगा, दैट्स व्हाई आई एम पिकिंग दिस नेम, फोकस 25। इसके अंदर अराउंड 30 स्टॉक्स का सिलेक्शन है उनका। ये सब कौन डिसाइड करेगा? दिस पर्सन डिसाइड्स व्हाट विल बी द कंपोजिशन, हाउ ही विल एलोकेट द फंड ऑन सेक्टोरल कॉल, कैसे उसकी चर्निंग होगी, क्या होगी, दिस इज द थिंग ये डिसाइड करेंगे जो फंड मैनेजर होते हैं। उसके बाद दिस सिक्योरिटी कि HDFC में लगाना है, रिलायंस में लगाना है, बजाज फाइनेंस में लगाना है, कहाँ लगाना है, ये सारी सिक्योरिटीज करेंगे, इन्वेस्ट विद सिक्योरिटीज, जो जेनरेट करेगा रिटर्न।
लाइक बजाज फाइनेंस आपका 10% बढ़ गया, रिलायंस आपका 2% बढ़ा, यहाँ पे लेट से कोई भी आपकी XYZ सिक्योरिटी है, आप SBI मान लीजिए, SBI बैंक है, यहाँ पे ये 10% माइनस हो गया, तो ओवरऑल जो भी रिटर्न है, अब उसके बाद टाइम टू टाइम इसको इवेलुएट करेगा फंड मैनेजर कि हमें रिलायंस में अपनी होल्डिंग बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, या इसमें और एडिशनल बाइंग कर दें या सेलिंग कर दें। सो दिस इज कॉल्ड चर्निंग। चर्निंग का ये सब ये डिसाइड करेंगे रेवेन्यू रिटर्न में, या फिर ये डिसाइड करेंगे रिलायंस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया है, हमें इससे थोड़ी सी प्रॉफिट इसका बुक कर लेना चाहिए। अब प्रॉफिट बुक अगर नहीं करेंगे तो जो एनएवी होगी, एनएवी इस फंड की, उस पे इम्पैक्टेड ही रहेगा। तो प्रॉफिट बुक करके दूसरे नए ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शन जो उनको उस टाइम पे मार्केट में मिलेंगे, he will switch that fund from one script to another, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे so that उनकी NAV appreciate करेगी with the market as move ahead, और he will book the profit from one security and switch to the other, so that जहाँ पे उनको दिखेगा कि हम और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ताकि उनकी NAV ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्म करे। which लेट्स से इन्होंने 10 की NAV पे कोई चीज बाय करी थी और उसको जाके आज 30 की NAV बुक करी, तो ये इनको गो बैक टू, जो रिटर्न आएगा गो बैक टू इन्वेस्टर्स कैसे जाएगा, ये 20 रुपए का प्रॉफिट इसके लिए होगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क कि म्यूचुअल फंड मोटा मोटा कैसे काम करता है। ओके, सो आई एम होपिंग आई एम क्लियर विद दिस थिंग। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज डू आस्क। सेकेंड, अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं डिटेलिंग में। ये तो होगी, ये स्लाइड तो आपकी हो गई कि ये म्यूचुअल फंड ओवरऑल काम कैसे करता है, AMCs क्या होती हैं ये बता दिया। क्लासिफिकेशन वाइज अभी हम और डिटेल में डिस्कस कर देंगे क्या है क्या नहीं। सेकेंड थिंग इज कि डिटेलिंग अबाउट म्यूचुअल फंड एंड हाउ दिस वर्क। आई एम कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक। क्या है, अब पढ़ते हैं इसको। म्यूचुअल फंड गिव स्मॉल or individual investors access to professionally managed portfolio of equities, bond and other securities. Like I have said कि ये प्रोफेशनल तरीके से बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं फंड को, सो यहाँ पे ये गेन आता है आपका। सेकेंड, म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट होल्डर्स बेसिकली लाइक आई एंड यू पीपल कि पार्टिसिपेट करते हैं गेन एंड लॉसेज में। लेट्स से अगर उस फंड को लॉस ही होगा, यहाँ पे अगर जो NAV 10 की थी अगर वो 8 की बचेगी, इसमें इसे भी हमें ही बियर करना पड़ेगा अल्टीमेटली। सेकंड, आप कोई भी म्यूचुअल फंड को पिक करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उस फंड की परफॉर्मेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर कौन है। तो आप लेट्स से जैसे अभी प्रशांत जैन जी थे HDFC में, जो उनका AMC है, उन्होंने अभी उनका रिटायरमेंट हुआ है, उन्होंने HDFC सिक्योरिटीज को ड्रॉप आउट किया है। वो बहुत अच्छे फंड मैनेजर माने जाते हैं, मिस्टर प्रशांत जैन। उनको बोला जाता है उन्होंने बहुत अच्छे से उस पूरे AMC को बहुत अच्छा चलाया है। तो ये अब वो कहीं और से अगर जुड़ेंगे इसके बाद, तो डेफिनेटली पीपल विल ब्लाइंडली ट्रस्ट दैट पर्सन कि हाँ भाई इन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो इन पे हम अभी भी आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रस्ट करना। तो ये फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस पे भी बहुत डिपेंड करता है, वो कौन से फंड को कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, बेसिकली मैं इसको क्रक्स में बता दूं। ये क्या होता है, जैसे आपका AUM होता है, असेट अंडर मैनेजमेंट, एक फंड के अंदर अगर एक स्कीम अगर आपकी 10,000 करोड़ की है, तो सेबी ही डिसाइड करता है, ये ब्रेसेस ये डिसाइड करेगा सेबी कि आपका एक्सपेंस आप कितना रखोगे उस फंड में। ये AUM आपका जितना बड़ा होता जाता है, एक्सपेंसेस की रेशियो आपके कम होते जाते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट दी एडमिन एक्सपेंसेस, कमीशन और फंड मैनेजर की फी एंड ऑल, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो जैसे जैसे AUM का साइज बढ़ता जाएगा, ये रेशियो कम होता जाएगा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज वो नहीं चाहता, वो ये एज पर सेबी के हिसाब से इसलिए डिसाइड किया जाता है कि ऐसा ना हो कि फंड आप बड़ा मैनेज कर रहे हो तो आप बहुत मोटा अमाउंट फंड मैनेजर के साथ ही रह जाए या ऑपरेशंस के साथ ही रह जाए, अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड होल्डर्स ने उन्हें कुछ ना मिले या कम मिले, या जो भी इफेक्टेड या इम्पैक्टेड रहे इस वजह से इसमें सेबी रोल प्ले करता है और वो ये रेशियोज डिसाइड करते हैं। वैल्यूएशन, अब अगर आप कोई भी लेट्स से मार्केट जब पीक पे थी, आप उस टाइम पे किसी भी म्यूचुअल फंड को पिक करते, उन सब का वैल्यूएशन बहुत हाई होता। इसके वैल्यूएशन के लिए आप उनका PB
और आप उनका शार्पे रेशियोज, बहुत सारी, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, अगेन दैट रिक्वायर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स विद द नंबर्स एंड ऑल. सो अभी हम ये नहीं करेंगे, जस्ट आई एम गिविंग यू द रफली नंबर्स कि आप पी देख सकते हैं, पीबी देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड का क्या है, शार्पे रेशियोज देख सकते हैं, और एक्सपेंस रेशियो. बेसिकली ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं. एनएवी का ट्रैक रिकॉर्ड, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, सिंस इंसेप्शन क्या कैसा रिटर्न दिया है, वो सारी चीजें अगर आप चेक करते हैं, देन योर डिसीजन वुड बी डेफिनेटली गोइंग टू बी अ हिट पार्ट. नेक्स्ट, अब कैटेगरीज की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज इक्विटी, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे आपके सारे जितने भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं एनएससी पे, सिर्फ उनसे ही स्टॉक्स पिक किए जाते हैं. आपके बॉन्ड फंड हो गया. बॉन्ड फंड के अंदर होता है आपका जो बॉन्ड इश्यूज किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स. फिक्स्ड इनकम बहुत अच्छा आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलता, बट हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पे आप एक सर्टेन छोटा रेट लेके चल सकते हो, डेफिनेटली मोर देन दी एफडीज एंड ऑल, यहाँ पे आप कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज बैलेंस फंड. ये आपका मिक्स्ड होता है इक्विटी एंड डेट का. इसमें आपका 40-60, 80-20, अगेन डिपेंड ऑन द फंड मैनेजर कि वो क्या रेशियोज रखना चाहें. कुछ रेगुलेशंस भी हैं इसमें जिनको कंसीडर करके यहाँ पे ये चीज आपको देखनी चाहिए कि वो क्या है और आपको क्या सूटेबल करता है. मोर ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपको क्या सूटेबल करना मतलब क्या करता है आपको. आप डेट में ज्यादा रखना चाहते हैं कंपोनेंट या इक्विटी में. इफ यू आर कीन टू गो फॉर दीज टाइप्स ऑफ फंड जो ब्लेंड हो, you can opt for this. मनी मार्केट जो फंड्स होते हैं वो बेसिकली लिक्विड फंड्स होते हैं. लेट्स से बड़ी बड़ी कंपनीज के पास या कहीं पे भी अगर आपके पास सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है और यू आर वेरी कंफ्यूज्ड कि हम इसे कहाँ पार्क करें फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर ई वीक और फॉर 1 or 2 or 3 days, आप ये लिक्विडिटी फंड्स हैं बहुत सारे मार्केट्स में, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. और जब आप बड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसमें भी देखेंगे कि आपको जो 1 से 2 दिन का डिफरेंस में भी जो गेन आएगा वो एक अच्छा गेन आ जाता है. इनकम फंड इज बेसिकली रिलेटेड विद द डिविडेंड्स कि डिविडेंड आपको अच्छा दे देते हैं. जिनको रेगुलर इनकम चाहिए होता है वो यहाँ पे कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट फॉर द ग्रोथ एस्पेक्ट. इंटरनेशनल फंड में ये है कि ये आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं कि आप इंडिया में रह के और डायरेक्ट फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप यहाँ से तो नहीं कर सकते, तो थ्रू दीज म्यूचुअल फंड्स आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको फॉरेन की जो अब्रॉड की मार्केट है वहाँ का भी एक्सपोजर मिल सके. द नेक्स्ट इज सेक्टोरियल एंड द थीमेटिक फंड्स. ये फंड आपके होते हैं लाइक बहुत अच्छा. अगर आपने मार्केट फॉलो करी है तो आई एम डेफिनेटली गेसिंग कि आपने देखा होगा कि आईटी का सेक्टर बहुत अच्छा, बहुत बूमिंग रिटर्न देके गया है. केमिकल के सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वेयर एज आपका बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म थोड़ा सा कम किया है या अभी थोड़ा सा नहीं चल रहा है, ऑटो नहीं चल रहा है. तो ये आपके सेक्टोरियल कॉल हो गए. इसी तरह से अगर आपको कोई बहुत ही पसंदीदा आपका सेक्टर है जहाँ पे आपका प्रेडिक्शन है या आप सोच रहे हो कि आने वाले टाइम पे ये सेक्टर में बहुत अच्छा बूम आ सकता है, तो यू कैन पिक दीज थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड, जहाँ पे फंड मैनेजर का टारगेट ही होता है कि एक ही सेक्टर के नंबर ऑफ शेयर्स उठाना. ऑल्दो थोड़ा सा ब्लेंड होता है वहां पे भी, दैट इज नॉट प्योरली इनटू दी सेक्टोरियल कॉल, बट थोड़ा सा ब्लेंड लेके मेजरली एलोकेशन जो होता है वो आपका एज एनी डेडिकेटेड सेक्टर्स होते हैं. लाइक आप टाटा डिजिटल देख लीजिए, आईसीआईसी प्रू का टेक्नोलॉजी फंड्स देख लीजिए. दीज आर टोटली आईटी बेस्ड. इसमें सिर्फ आपको आईटी के स्टॉक्स ही मिलेंगे और इन सब ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है अगर आप इनका प्रीवियस ट्रैक चेक करते हैं. देन ELSS, आई एम श्योर यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग कि ELSS आपका ATC का बेनिफिट दिलाता है, एंड दिस इज जस्ट फॉर द टैक्स एफिशिएंसी के पर्पज से लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं. और बाकी भी प्योर इक्विटी है. You can go for ELSS also if you want to claim the deduction under 6A.
So next is exchange traded fund. अब आई एम श्योर आपका कंफ्यूजन होगा कि ये म्यूचुअल फंड एंड आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. सो एक्सचेंज ट्रेडेड, अब पहले बात कर लेते हैं एक्सचेंज की, कि जो हमारा एनएससी है, एनएससी पे जो इंडेक्सेस की बात करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड और इंडेक्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑल्दो इन दो में, पर मैं दोनों का एक ही नाम से समझाऊंगी, आपको कोरिलेट करने की कोशिश करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा इनके बीच का क्या डिफरेंस. आई विल एक्सप्लेन दैट टू बट लेटर ऑन. सो एनएससी में इंडेक्सेस हैं जो सेक्टोरियल होते हैं, तो अराउंड 13 आपके सेक्टोरियल इंडेक्सेस हैं, और नेक्स्ट अदर इंडेक्सेस बने हुए हैं लाइक निफ्टी 500 हो गया, लार्ज कैप हो गया, आपके लिक्विडिटी पे बने हुए हैं कुछ, आपका अल्फा 30, अल्फा 50, दीज और आर द ब्लेंड की वो कैपिटली कितना एग्रेसिवली मूव किया है टुवर्ड अपसाइड एंड लिक्विडिटी सबसे ज्यादा किसमें आई है. सो दीज आर मेड ऑन दैट थीम की टॉप 30 वही पिक कर रहे हैं. ये सब इस तरीके के बहुत सारे इंडेक्सेस बने हुए हैं दिस. तो अब हम स्टॉक्स को ना पिक करके डायरेक्ट हम चाहते हैं कि लेट्स से निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 नॉट निफ्टी 50, निफ्टी 500. निफ्टी 50 भी आपका एक मिड, निफ्टी मिड 100 है, निफ्टी स्मॉल 100 है, ऐसे ऐसे करके 300 है, ये सारे हैं. यहाँ पे आप निफ्टी 500 लेट्स से आप पिक करते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे क्या कंपोजिशन होगा कि निफ्टी के जो टॉप ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप ये बाय डिफॉल्ट चूज करते हैं, तो निफ्टी 500 की जो कंपनीज हैं आप उसमें लगाना चाहते हो, रेदर नॉट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द कि आप 10 स्टॉक उठा रहे हो, 15 स्टॉक उठा रहे हो, यू आर गोइंग जस्ट फॉर वन पिक एंड दैट इज निफ्टी 500 के इंडेक्स. तो ये आपके ETF होते हैं. अब ये जैसे जैसे ये पूरा ओवरऑल इंडेक्स आपके चार्ट वाइज ये ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपकी यहाँ पे इसकी NAV ग्रो करेगी एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ in terms of complete movement on that particular indexes. So ये है. अब ETF एंड इंडेक्स में क्या मेजर बेसिक डिफरेंस है. ETF आपका क्या करता है कि ETF आपका हर MCA प्रोवाइड करता है, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, वो सब एक डिटेल का डिस्कशन है, वहां पे नहीं जाएंगे बहुत डीप में, बट रफली एक आइडिया के साथ ये जो निफ्टी 50 का आपका इंडेक्स फंड लेट्स से किसी ICICI ने ऑफर किया या HDFC ऑफर कर रहा है, तो जो यहाँ का कंपोजिशन होगा कि अगर स्टार्टिंग में आपका सबसे बड़ा कंपोजिशन आपका रिलायंस का है, HDFC का है, ITC का है, आपका बजाज फाइनेंस का है, तो सेम एज इट इज ये भी कॉपी कर लेंगे उस चीज को और उसी सेम प्रोपोर्शन पे यहाँ पे वो चीज में पैसा लगा देंगे, तो ये आपका ETF हो जाएगा. इंडेक्स में ये प्रोपोर्शन एग्जैक्ट सेम नहीं रखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट जाते हैं एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ fund manager. So this is only the basic difference between index fund and exchange traded fund. यही आपकी यहाँ पे नोटिंग है कि ETF is a basket of stocks that reflect the composition of an index are passively managed. कि जैसे जैसे ये ग्रो करेगा ये चार्ट आपका वैसे वैसे आपका NAV भी यहाँ पे शूट करेगी. Mutual fund aims to generate alpha by outperforming a market benchmark, whereas ETF का एम होता है टू ट्रैक द रेलेवेंट इंडेक्स एंड रेप्लिकेट, मतलब उसकी डुप्लीकेसी तैयार कर देना और रेप्लिकेट इन रिटर्न, कि उसी की डुप्लीकेसी रेडी कर देना जो कंपोजिशन पे है और एज इट इज आता रहेगा. उसमें फंड मैनेजर बहुत ध्यान कुछ नहीं लगाता है कि नहीं हमें ये पिक नहीं करना, ये स्टॉक नहीं हटाना है, उसको रखना है, ये कोई डिसीजन नहीं होता. जस्ट ही इज गोइंग विद द फ्लो एज इट इज बाय कॉपीइंग द एनी इंडेक्सेस. सो this is all about the detailing about this ETF. अगेन हमारा दूसरा जो मैंने आपकी हायरार्की में बताया था कि रिस्क फ्री, देन म्यूचुअल फंड, देन इक्विटी, या PMS का सेक्शन थोड़ा सा छोटा है, I'll explain that too also. ये है आपका AIF. AIF है आपका सबसे एडवांस लेवल पे, बिकॉज इन शॉर्ट में कि जो AIF है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, ये आपका से भी अगेन डिसाइड करता है, ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग,
बिकॉज अगर लिस्टेड की बात करें तो वो आपका NSE BSE पे कवर हो जाता है, तो यहाँ पे कभी भी आपकी, ऑल्दो ये ऑप्शन अभी है कि वो कर सकते हैं, कोई ऐसे कॉन्स्टेंट नहीं है, पर मेजरली अगर AIFs को देखा जाए तो दे आर कीन टू इंटरेस्ट इनटू दी स्टार्टअप्स और जो न्यू एज बिजनेसेस हैं इस तरीके से, या जो अर्ली स्टेज या सीड फंडिंग या इस तरीके से जो स्टेजेस बने हुए एक टाइम से काम कर रहे हैं, लाइक ओला एंड ऑल इनटू दीज कैटेगरीज, वो लिस्टिंग के जस्ट पहले हैं। तो इस तरीके के जो वेंचर्स होते हैं बेसिकली वहां पे थ्रू AIF ये लोग ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। अब AIF की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम आपकी, ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोल सकते खैर इसको, यहाँ पे आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 1 CR की है कि आप यहाँ से, बिकॉज सेबी तभी आपको AIF चलाने की परमिशन देता है जब आप इस ब्लॉक से पैसा उठाना थ्रू द मार्केट आप स्टार्ट करते हो। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 1 CR की, and that is why this is not considered very lucrative option for the investment for the retail investors basically, because retail investor don't want to go for this huge amount of blockage ki wo nahi karega. The second thing is investment in AIF are trendy affairs among HNIs because they may get high return once the venture get successful. Like आप Go Mechanics देख लीजिए, आप पोयो रूम्स देख लीजिए, और आपका ये ओला देख लीजिए, ये सारे डिलीवरी पहले था, अभी वो लिस्टिंग के बाद लिस्टिंग हो चुकी है उसकी। सो दीज आर द वेंचर्स जो बहुत अच्छे रहे हैं। तो जिस भी AIF ने अर्लियर स्टेज पे इन पे इन्वेस्ट किया होगा उन्हें बहुत ही, मतलब उनका आई थिंक एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो 500 से 600% का अप्रॉक्स इस तरीके से रिटर्न देके जाता है। बट अगर एक आप एवरेज रेट की बात करते हैं तो जो AIFs भी हैं, बहुत सारे हैं अभी के टाइम पे, उन्होंने ऑन एन एवरेज 20 to 25% पर एनम के हिसाब से ही रिटर्न दिया है, बिकॉज देयर आर चांसेस कि वो जो बकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से उन्होंने 10 कंपनीज में कर रखा है, तो सो देयर आर द चांसेस कि आई थिंक 1 or 2 ही हिट हो। बिकॉज अगर किसी भी AIF ने ऐसा बल्क में कर रखा है तो ऐसा नहीं कि उसके 10 में कर रखा है तो 10 के 10 हिट होंगे। बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस नहीं चलते हैं, कई बार ऊपर आके बहुत सारे मैनेजमेंट में कुछ हो गया, आपका कोई बड़े इस्टेब्लिश्ड प्लेयर ने सेम वेंचर आपका लॉन्च कर दिया, तो आप स्टार्टिंग से लेके ऊपर लेके आ रहे थे वो आपका खत्म कर दें, वो आपको कंपटीशन ऐसा लाके दे दें कि आपका बिल्कुल ही मार्केट खत्म कर दें। तो इस तरीके से बहुत रिस्की अफेयर हो जाता है ये, बट रिटर्न भी अगर ऑन वर्सेस अगर उस चीज को देखा जाए तो रिटर्न भी अच्छा ही मिलता है इसमें। रिसेंटली स्पेशल AIF ऑफर करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट जो मार्केट से पैसा लेते हैं और उसके बाद वो चीज वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द AIF। नाउ अब हम इक्विटी की बात करते हैं कि इक्विटी में हमें कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करने चाहिए अगर आप डायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं कि आप रिसर्च करके आप इन्वेस्ट करो, तो कैसे क्या ऑप्शन है, कौन से वो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो प्रीवियसली उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। सो दिस इज I'll explain in this slide. Equity is considered as one of the best investment options for the long period. Definitely, आप short period में बहुत अच्छा, अगर आप शांति के साथ बैठ के बहुत अच्छा पैसा कमाने के मूड में हैं, then you have to sit it for the long period of time. ये बिल्कुल क्रक्स है, ये ट्रेडिशनल फैक्ट है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता चाहे जो भी बोले। बट अगर आपको इक्विटी से मोटा पैसा कमाना है बिना टेंशन लिए हुए, then you have to sit it very tight कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठें। Considering the risk appetite, the return generated by equity are higher than any other investment option. ये भी बिल्कुल फैक्ट वाली चीज है कि जो आपका लॉन्ग टर्म में जो आपका रिटर्न देके जाएगा वो मैं भी आपको नंबर्स के साथ दिखाऊंगी कि आपको किसी और ऑप्शंस, जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वो नहीं दे सकते। Now it is prudent to consider certain aspects such as picking the right stock and time your entry and exit in the market. This is very you can say very debate वाला टॉपिक है कि कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, दिस इज वेरी फैक्ट। बट दूसरा फैक्ट ये भी है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है हमें उसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए।
बिकॉज डू नॉट गो अगेंस्ट द मार्केट. मार्केट अगर सीधे जा रही है आप सीधे जाओ, मार्केट अगर पीछे की तरफ जा रही है तो आप भी पीछे जाओ, देन यू विल बी इन दी विनिंग पोजीशन. अदरवाइज वो बोलते हैं ना कि आप लहरों के साथ चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. रिवर्स डायरेक्शन में जाने का कोशिश करेंगे, सिर्फ आपका नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा. तो ये बहुत डिबेट का टॉपिक है. अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो बहुत डिटेल में इसमें नहीं डिस्कस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली लेटर I'll explain कि क्या हो सकता है यहाँ पे. डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने की वेरी एक्सटेंसिव वर्किंग है. इफ यू वांट टू अर्न कि हमें हाँ 500% 600% का एब्सोल्यूट रिटर्न पड़े मिले, तो उसके लिए आपको लॉन्ग ड्यूरेशन रखना पड़ेगा माइंडसेट में, और एक लंबी वर्किंग करनी पड़ेगी कि कौन सा स्टॉक उसको पिक किया जाए. सेकेंड, कॉर्पोरेट इवेंट्स लाइक डिविडेंड, बोनस एंड स्प्लिट, ये आपको अच्छा काम कर सकते हैं. ये अराउंड 8 to 9% का डिविडेंड यील्ड में, अगर आप चाहते हैं कि हमें डिविडेंड से एक रेगुलर इनकम अच्छी बनी रहे विद द इक्विटी, हम इक्विटी में इन्वेस्टेड भी रहे और हमें आता भी रहे. बट ये सारे ऐसे स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं जो बहुत ही बेसिकली PSU बेस्ड, नाम ही लिए हैं मैंने. कैपिटल एप्रिसिएशन आपको बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा, बट हाँ रेगुलर इनकम, सेफ इन्वेस्टमेंट, ये ट्रेडिशनली बहुत अट्रैक्टिव हुआ करता था व्हेन डिविडेंड वाज एग्जेम्प्ट. बट अभी के टाइम में आपका डिविडेंड भी टैक्सेबल हो गया है, तो दिस इज नॉट वेरी लिक्रेटिव फैक्टर कि हम डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें. बट क्यों करेंगे, बिकॉज वहां पे आपका टैक्सेशन का क्लॉज आ चुका है. आपके पास ऑप्शन में डिविडेंड यील्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं. अगर आप चाहो कि आप रेगुलर इनकम कमाना चाह रहे हो तो आप ये फंड्स भी उठा सकते हैं. मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप रेगुलर इनकम यहाँ से आप अपनी जनरेट कर सकते हैं. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो हेल्प इन रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्ट you from volatile fluctuation in the stock prices. Do not put all your egg in single basket. वॉरेन बुफे का कोट है, एंड आई एम श्योर आप सबने ही सुना होगा इस चीज को, कि आप सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह बिल्कुल मत रखिए, बिकॉज एक डूबेगा तो पूरा डूब जाएगा. इसलिए होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस में आप मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टेड रहिए. एक डूबेगा तो दूसरा संभाल लेगा. इस तरीके से आपका ये रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है यहाँ पे. नाउ ये लिस्ट है आपकी, ये टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे. अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट किया होता इन स्टॉक्स में, तो आपको डायरेक्ट की बात करें कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो आपको क्या मिलता. बजाज फाइनेंस में अगर आपने कर रखा होता तो दिस वैल्यू आपको CAGR आपको 53% का आपको CAGR मिलता. बजाज फिनसर्व, Adani Enterprises have moved so recently only, so this I would not suggest, but yeah, again Pidilite, Titan, JSW, Asian Paint, Maruti, not very convicted with this point, but yeah, it is have performed. They have performed. SCL, Divi's, Kotak, Reliance. So these are the amount आपका ये value current valuation होती if you have invested your 1 lakh rupees 10 year back in these stocks. And these are the, ये अभी भी ऐसा ऑप्शन, अभी भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हैं सेम कंपनीज, जो आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर हम जब बात कर रहे होंगे तो कुछ शायद इसी में से अगेन उस लिस्ट में भी होंगे और कुछ नए होंगे. अब वो कुछ नए के लिए आपको जो डिटेल्ड एक्सटेंसिव वर्किंग करनी होती है वो खोजने के लिए कि वो कौन से होंगे. एशियन पेंट जैसा स्टॉक जिसमें 90s में या 2000 के टाइम पे पूरे डिकेड में कहीं पे सर्च आउट किया होता और इफ दैट पर्सन इज इन्वेस्टेड तो वो कितना अच्छा होता है. आप बजाज फाइनेंस की देख लीजिए, अगर वो वहां पे अगर आपने खोजा होता और उस टाइम पे इन्वेस्टेड होते और लेके भूल गए होते तो उसकी वैल्यू आज इस टाइम पे ये होती. लाइक राकेश झुंझुनवाला जी ने टाइटन को खोजा था बैक इन 90s, तो उसमें वो कितना उन्होंने रिटर्न कमाया है ये आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सबने डेफिनेटली उनका टाइटन वाला स्टोरी तो सबने ही डेफिनेटली सुना ही होगा. So this slide is stock specific and this slide is belongs to mutual fund. की सेम चीज, अगर 10 year back if you have invested your 1 lakh rupees in these mutual funds, तो आज की करंट में उनकी वैल्यूएशन क्या होती एंड क्या CAGR से वो आपका ग्रो किया होता. So this is again they are the very good investment options जो आप डेफिनेटली अगर आप बिल्कुल भी बिना हेडेक के जाना चाहते हैं तो इसको
सिर्फ कुछ नंबर्स देख लीजिए, थोड़ा सा वैल्यूएशन देख लीजिए। आज की एज ऑफ नाउ, आज की बात करें 10 अगस्त 2022, तो अभी भी है कि अगर ये आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो। कुछ वैल्यूएशन बहुत एब्सर्ड वैल्यूएशन नहीं है होगा, आप अभी भी पिक कर सकते हैं। सेम गोज विद दीज नंबर्स, दीज स्क्रिप्ट, सॉरी। टाइटन आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेगा, पिडिलाइट अच्छा करेगा। तो अभी भी है ऑप्शन कि आज की डेट पे भी अगर आप पिक करना चाहें तो यू कैन गो फॉर द ट्रेंड और इन्वेस्टमेंट। नाउ अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन और स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में क्या क्या है, मुझे थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। सो इवैल्यूएशन, आपका सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड की बात करें या हम डायरेक्ट इक्विटी की बात करें, आपका ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर कि आपको अपना अचीव गोल करना है। लेट्स से आपको अपने लिए चाहिए, लाइक यू आर लेफ्ट विथ 5 ईयर टाइम टू योर रिटायरमेंट, तो वो 5 साल का है। आपके दिमाग में वो टाइम फ्रेम होना चाहिए कि बस हमारा 5 साल का हॉरिजॉन है, हमें उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है। इफ यू आर लाइक कि आपकी डॉटर है, आपका सन है, हमें एजुकेशन और मैरिज का प्रपोजल लेके चलना है, तो वो 10 साल 15 साल वो हॉरिजॉन डिसाइड करना पड़ेगा। उस हॉरिजॉन को कंसीडर करते हुए हमें वो इन्वेस्टमेंट का टाइप एंड टाइम, और अगर आप SIP एंड ऑल के लिए जाते हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे, तो वो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई हमें इतने समय तक हमें इतना इतना, और इस इंटरवल में हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उस तरीके से बढ़ाना होगा। देन यू विल बी एबल टू ओनली गेट योर गोल्स अचीव। तो ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, वेदर इन इक्विटी और म्यूचुअल फंड। बिकॉज आप इंश्योरेंस एंड ऑल में जैसे आप देखते हैं, तो वहां पे तो वो लॉक इन दे देते हैं, तो वहां मजबूरी हो जाती है, वहां पे वो ब्लॉकेज हो जाता है। पर म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बट ये आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको कोई बाउंड, टाइम बाउंड नहीं है यहाँ पे। बट फिर भी आपको उस टारगेट्स के साथ डेफिनेटली चलना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में उस ऑब्जेक्टिव के साथ लगाया है तो हमें वो इन्वेस्टेड रहना ही रहना है। असेट एलोकेशन में अगेन जो आपका सेम वॉरेन बुफे का है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट, वो वाली सीन है कि सब कुछ इक्विटी में ही नहीं लगा के रखना है। और आपका एज पर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप इक्विटी, डेट, लिक्विड एंड आर्बिट्राज फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आर्बिट्राज में भी आपको डेट का कंपोनेंट ही होता है, बट आपको जो यहाँ पे टैक्सेशन का जो रेट मिलता है वो आपको मिलता है इक्विटी वाला, दैट इज 10 और वो 15% वाला, यहाँ पे आपको ये रेट मिल जाता है। डेट में इन्वेस्टेड होने के बाद भी आपको टैक्सेशन का जो बेनिफिट है वो आपको इक्विटी वाला ही मिल जाएगा। तो एक ये अलग कैटेगराइज्ड बनी हुई है। अब बात करते हैं रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग कैन बी डन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू स्विच योर फंड फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर। ये हम बात करें कैटेगरी में कि एक कैटेगरी में से दूसरी कैटेगरीज को हम कैसे स्विच कर सकते हैं। लाइक अब इसको एग्जांपल से समझिए कि अगर आपने एलोकेट कर रखा है कि हमको अपना 60% इक्विटी में डाल के रखना है, 30% अपना हमें डेट में डाल के रखना है, 10% लिक्विड फंड्स में डाल के रखना है, तो ये आपका रेशियो डिसाइडेड ही होना चाहिए। दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। सो जब भी कोई मार्केट आपको स्टीप करेक्शन दे जाए या आपका वैल्यूएशन जो है थोड़ा सा हाई हो जाए, लाइक अडानी के स्टॉक्स को आप देखेंगे तो किस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सब बहुत ओवर वैल्यूड उसमें है। तो ऐसा जब हो जाए, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में हैं, तो वहां से पैसा थोड़ा सा विड्रॉ करके अपने दूसरे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में स्विच कर जाना बेटर होता है, तो ये आपका मेंटेन्ड रहे और आपका फंड सिक्योर होता रहे। तो इस तरीके से प्लानिंग आप कुछ कुछ कर सकते हैं। दिस इज नॉट द प्रिस्क्राइब्ड, बट हाँ, अगर आप मोटा मोटा ऐसा कुछ डेफिनेटली प्लान आउट करके रख सकते हैं। अब अगेन बात आती है इक्विटी। इक्विटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें कैसे करना चाहिए। तो लाइक अगर आप इफ यू मतलब आई मीन ये सजेस्टेड नहीं होता कि आप लमसम अमाउंट एक बार में ही डाल दो इफ यू आर गोइंग फॉर द म्यूचुअल फंड्स, या अब आपके पास ऑप्शन आ गया है कि आप स्टॉक्स में भी SIPs कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी एडवांस और बहुत अच्छा फैक्टर है फॉर द इन्वेस्टर्स कि वो म्यूचुअल फंड में भी SIPs कर रहे हैं और वो डायरेक्ट इक्विटी में भी SIPs कर सकते हैं। तो
तो जो इक्विटी का ओवरऑल है, अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट का 60% आपको इक्विटी में इन्वेस्टेड रहना है, तो उसमें भी आप एलोकेट करिए अपने फंड को कि लार्ज कैप में कितना रखेंगे, मिड कैप में कितना रखेंगे एंड स्मॉल कैप में कितना रखना फिजिबल होगा और वो आपके लिए एडवर्सली इफेक्ट ना करे. सो टू अवॉइड दैट यू शुड एलोकेट योर SIPs into this numbers कि आप लार्ज कैप स्टॉक्स, ऑल्दो ये आपको साल का 8 से 10% का देंगे पर स्टेबलाइज रिटर्न देंगे, ये आपका थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं. स्मॉल कैप ऑल ऑफ सडन कोई भी रैली करके आपको कोई भी नंबर दे सकता है. बट इफ यू आर लाइक कि भाई हमें अपनी डॉटर या सन के लिए हमें एजुकेशन के लिए फंडिंग चाहिए होगी आज से 10 साल के बाद या 10 से 15 साल के बाद, जो बहुत बल्क अमाउंट में चाहिए होगा, देन आप स्मॉल कैप के फंड्स को आप पिक कर सकते हैं. इसको पिक करने का भी तरीका होता है कि आप सबका सारे फंड्स देखें कि आपके पास अवेलेबल कौन से वो फंड्स हैं जिन्होंने नंबर्स में अच्छा परफॉर्म किया हो, प्लस उनका एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड हो. ऐसा नहीं हो कि वो 4 साल पहले आए हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है तो आपको लिक्विडेटिव नंबर ही दिखे, नहीं चलो भाई इसमें इन्वेस्ट करें, नहीं ये चीज नहीं. ऑल्दो ऐसा नहीं ये बोल सकते हैं कि नहीं वो चले ही जाएंगे या कुछ गलत ही होगा, बट जिनका एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो उन पे थोड़ा ज्यादा हम रिलायबिलिटी वाला पॉइंट आ जाता है कि हम ज्यादा अच्छे से ज्यादा रिलायबल वो आपके एवेन्यूज हैं. सो आप यहाँ पे ऐसे एलोकेट कर सकते हैं बिकॉज ये जो 8 से 10% हो सकता है ये कॉम्पनसेट कर दे आपका किन्हीं भी 10 से 15 साल के किसी भी बीच के 2 साल में आपका इससे ज्यादा का रेट उठा के वो दे देगा. बट ये थोड़ा सा रिस्की होते हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, तो इस वजह से इसका एलोकेशन थोड़ा सा कम ही रखते हैं. Again, if you do not want to go only stock based mutual fund then and want to earn capital appreciation from index, then go for index. अब आप अगेन वही चीज है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है या इंडेक्स फंड में लगा देना चाहिए पैसा. बिकॉज अर्लियर अगर हम थोड़े टाइम पहले देखेंगे तो आई थिंक सबने म्यूचुअल फंड का नाम सुना हुआ था. इंडेक्स में डायरेक्ट, ETF में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं हुआ करता था. बट आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है. जस्ट लाइक क्रिप्टो, आपने 5 साल पहले नाम नहीं सुना हुआ था, आज के टाइम पे इतना फैक्टर है, बहुत सबके हिस्से से ही सुनते हैं कि क्रिप्टो का ये है, क्रिप्टो कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इतना गेम देके गया है, ये है वो है, वो सारी चीजें. तो जस्ट गोज विद दिस इंडेक्स फंड वाला चीज भी आपके साथ वैसे ही काम करता है. और अपनी इकोनॉमी पे अगर आप भरोसा करते हैं कि आपकी इकोनॉमी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी, वो डेफिनेटली ग्रो करेगी. इकोनॉमी अगर आपकी ग्रो करेगी तो वो जो भी इंडेक्स मार्केट है वो भी इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब कि आपके यहाँ पे काम, जो इंडस्ट्रियल काम, जो कमर्शियल लेवल काम है, बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके नंबर्स पे आएगा. नंबर्स अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली इंडेक्सेस पे आएगा. इंडेक्स वो प्लेटफॉर्म होता है जो ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर आप, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि वो एक स्टॉक बजाज फिनसर्व में किया, बजाज फाइनेंस पे आपने इन्वेस्ट किया, बजाज फिनसर्व छूट गया, या आपका चोला छूट गया, चोला फाइनेंशियल छूट गया, सब बहुत अच्छी कंपनियां हैं, पर सब में तो नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो उन सब चीजों से अगर आप थोड़ा सा ऊपर आके देखना चाहेंगे तो इंडेक्स फंड का जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत अच्छा है. और अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास टू मेक द इन्वेस्टमेंट थ्रू इंडेक्स मार्केट. तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपका. सेकंड, आपका रिटर्न वाइज जब भी बात करते हैं, ये बहुत प्योर सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, या मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन टूवर्ड्स स्टॉक ज्यादा रहता है, तो शायद मैं ये बात बोलती हूँ, पर आप इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स फंड से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा नहीं देगा. ये बहुत ही डिबेट वाला अगेन टॉपिक है, तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं कि कौन सा ज्यादा रिटर्न देके जाएगा लॉन्गर पीरियड में और कौन सा कम रिटर्न देगा. Next is, for those who don't have great conviction in equity market, then debt fund are the best option. जिनका बहुत अच्छा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का नहीं बनता है, तो डेट के म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको FD से ज्यादा रिटर्न आप कमा सकते हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेस्टेड रहिए. तो डेट के भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं.
और तो डेट के लिए बहुत डिटेल में मैं वर्किंग नहीं करती, बट एक टिप है मेरे पास अबाउट दी डेट फंड्स की, वो कर सकते हैं कि जब भी आप लो इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड देखिए मार्केट में, जैसे अभी क्या हो रहा है, यूएस फेड के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, कोरोना के टाइम पे बहुत कम कर दिया गया था, सेम गोज विद द आरबीआई ऑल्सो, कि जब लोअर रेट का ट्रेंड चल रहा था तो जो एनएवी है आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रही होती है ऑफ द लॉन्ग ड्यूरेशन जो आपके फंड्स हैं। तो अगर आपको लो एनएवी पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले इन डेट फंड तो डेफिनेटली करना चाहिए। और ये सिनेरियो आपको कब मिलेगा? ये मिलेगा आपको जब आपका ट्रेंड इंटरेस्ट का नीचे की तरफ होता है, मीन जो लोअर होता है। हाई इंटरेस्ट ट्रेंड जब ट्रेंड चल रहा हो तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के फंड चुनने चाहिए, मतलब पिक करने चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट। और बाद में अगर आप स्विच करना चाहें, जिस भी तरह से आप डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, पर इस तरीके की आपको फंड्स सेलेक्ट करने चाहिए इन ट्रेंड्स को देखते हुए। सो नेक्स्ट इज बॉन्ड। बहुत सारे लोगों का होता है कि हमें बिल्कुल भी रिस्क हम नहीं चाहते हैं, और हमें कुछ शॉर्ट बता दीजिए कि फिक्स असेट से ज्यादा रिटर्न जो मार्केट में हमें कुछ और देके जाए, कोई इंस्ट्रूमेंट और मोटा मोटा फिक्स्ड अमाउंट आता रहे हमें वो। तो बॉन्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर बॉन्ड के लिए भी थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहने की जरूरत है। यहाँ पे आप उन बॉन्ड्स को पिक कर सकते हैं, पीएसयूज ने जो इशू किए हैं, कॉर्पोरेट्स ने भी जो इशू किए हैं, दो ही बेसिकली इशू करते हैं, पर अच्छे कॉर्पोरेट्स जो इशू करें बॉन्ड, और पीएसयूज जो करें। और दूसरी चेक करने वाली बात होती है कि जो गारंटीड बाय सीजी एंड एसजी हो आपका, ये थोड़ा सा प्रेफर करना चाहिए। रेटिंग्स को आप इवेलुएट कर लीजिए कि जो बॉन्ड मार्केट में इशू हुआ है उसको ये जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने किस तरीके से रेट किया हुआ है। लाइक रेटिंग का जो चलता है वो आपका चलता है ए, डबल ए, ट्रिपल ए, सिंगल बी, डबल बी, ट्रिपल बी प्लस। तो जैसे से आपका ए, डबल ए और ट्रिपल ए, जैसे से आपका ये नंबर बढ़ता जाता है उतना स्ट्रांग माना जाता है। लाइक सिंगल ए इज फॉर ओके ओके, आई मीन यू कैन से इट्स फॉर लो, और ए माइनस या बी माइनस, सो दीज आर फॉर द लो फाइनेंशियल एपेटाइट वाली सिक्योरिटीज को अलॉट करते हैं ये लोग। अगर डबल ए है या ट्रिपल ए है तो वो आपका मॉडरेट या वेरी हाई, कि फाइनेंशियल पे बैक्स की जब बात आएगी या उनके नंबर्स में जो वर्किंग रेशियोज का जो उनका पैरामीटर है एनालाइज करने का, या कंपनी इस तरीके से मैनेज्ड है कि जब पे बैक पीरियड आता है तो वहां पे आपको अच्छे से पे कर पाए, उसके लिए आपकी जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो रेट करती हैं। रेटिंग में हमेशा देखने की जरूरत है कि आपको ए मिले, डबल ए उससे ज्यादा अच्छा है, ट्रिपल ए आपका और ज्यादा बेटर है, ट्रिपल ए प्लस उससे भी ज्यादा बेटर है। अगर ये चीज ए माइनस दे रहे हैं या बी माइनस दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा मॉडरेट या लो उसका बोल सकते हैं, तो थोड़े से रिस्की हो जाते हैं ये सारी चीजें। तो ये देखने वाली चीजें होती हैं इफ यू आर कीन टू इन्वेस्टेड इन दी बॉन्ड। सेकंड, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बॉन्ड आपका ट्रेडेबल है या नहीं, कि आप सेकेंडरी मार्केट जो आपकी बॉन्ड्स की प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होती हैं, दो तरीके से होती हैं कि फर्स्ट टाइम कोई चीज लॉन्च हो रही होती है, दैट इंट्रोड्यूस होती है प्राइमरी पे, उसके बाद जब वो ट्रेड करने लग जाती है पैसा रेस करने का फ्रॉम दी मार्केट। नाउ दिस इज द बॉन्ड। नाउ अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। अब लेट्स से अब आप लोग किसी का भी कन्विक्शन या बहुत सारे लोगों का होगा कि हमें पोर्टफोलियोज मैनेज करना आना चाहिए, तो हम डायरेक्ट इक्विटी को या डायरेक्ट एक स्टॉक को हम स्टडी कैसे करें, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। किसी को भी हम किसी भी कंपनी को एनालाइज कैसे करें कि कौन सी अच्छी है। लेट्स से कि अगर हम टाइटन की बात करें तो टाइटन के बारे में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए,
हम पिडिलाइट को अगर पिक कर रहे हैं तो पिडिलाइट में हमें क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या नहीं देखनी चाहिए। बजाज फाइनेंस को अगर हम पिक करने जा रहे हैं तो इसमें चेक करना चाहिए कि हमें क्या देखना है। सो सबसे पहले पॉइंट होता है आपको इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी कि एक एक व्यू लीजिए कि वो इंडस्ट्री आपकी कैसी है। जैसे अगर आप बात करें तो हमारा जो आईटी सेक्टर है, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो जीडीपी में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जीडीपी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज रेवेन्यू के सोर्सेज में बात करें जो फॉरेक्स एंड ऑल का है, तो आईटी बहुत मेजर प्ले करता है, बिकॉज ये बहुत बहुत अराउंड 40 to 50% का ऐसा है कि जो आईटी आपको कमा के दे रहा है अपनी इंडियन इकोनॉमी को। तो ये हो गई आपकी इंडस्ट्रीज के डेटा कि आपको सेक्टर देखना है। चाइना 1+ की जब से पॉलिसी आई है तब से हमारे, आपने देखा होगा, केमिकल सेक्टर को बहुत बूम मिला है। टेक्सटाइल आप देखोगे कि रिसेंटली आपने टेक्सटाइल में बहुत मूवमेंट देखी है, क्योंकि वो आपके कॉटन के प्राइसेस एंड ऑल में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो इस तरीके की जो सेक्टर और यू कैन से इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज हैं उनको आपको देखना चाहिए। पॉलिसीज एंड ऑल क्या है कि कहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है, और गवर्नमेंट क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। लाइक सोलर प्लांट लगाने के लिए बहुत जगह आपको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं इस तरीके से। तो अगर ये सब बहुत फेवरेबल हो जाती हैं तो जो कंपनियां इन सेक्टर्स में डील कर रही हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत पॉजिटिव वो हो जाता है, एक प्रिविलेज मिल जाता है यू कैन से, कि हम वहां पे और अच्छे से काम कर पाए। अगेन, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने के लिए पिक करने, तो उसके बोर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है। कोई ऐसा तो नहीं कोई फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो वही कंटिन्यूसली कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन है, दूसरी कौन सी ऑल्टरनेटिव कंपनीज में वो इन्वेस्टेड हैं, आई मीन सॉरी एज अ डायरेक्टर वहां पे भी वो काम कर रहे हैं। तो बोर्ड को ओवरऑल स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजनेस मॉडल कि उनके उनके सप्लायर्स कौन हैं, वो किसको फर्दर सेल आउट कर रहे हैं, ये सारी चीजें कि ये आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो हमने चेन पूरा पढ़ते हैं कि हम कहाँ से प्रोक्योर करके कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पूरा चेन होता है, कौन कौन से आपके टारगेटेड कंज्यूमर्स क्या हैं, कैसे हैं, अल्टीमेट एंड यूजर्स कौन है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं जो एनालाइज करने चाहिए। SWOT एनालिसिस, आई एम श्योर आप सब लोगों को पता है कि वो स्ट्रेंथ देखना क्या वीकनेसेस हैं। तो दीज आर द नंबर्स। और उसके बाद क्वांटिटेटिव नंबर्स की जब बात करते हैं तो हमें परफॉर्मेंस रेशियोज चेक करना पड़ेगा कि ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कि वो कंपनी ठीक है सब कुछ बहुत अच्छा कर रही है, पर क्या मार्केट भी अप्रिशिएट कर रही है कि नहीं कर रही है। मार्केट प्राइस जो है किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, क्या वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 10 वाली चीज 50 हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। अगर आपका मूव नहीं दे रहा है तो इन सब का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि मार्केट प्राइस, जिससे हमारा मतलब हमारी कैपिटल एप्रिसिएशन का है। वही सेम अगेन बात हो जाती है कि टाइमिंग इसमें कोई नहीं कर सकता कब करेगा, पर अगर इसमें पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल हमें यहाँ समझ में आ जाएगी, ये पोटेंशियल कब कर रहा है, ये आपको टाइमिंग ये देखना पड़ेगा कब आप इन्वेस्टेड रहना, कितने टाइम के लिए रहना चाहते हैं, कब रहना चाहते हैं, 10 वाली 20 पे निकालना चाहते हैं, 10 वाला चीज आप 40 पे सोल्ड आउट करना चाहते हैं या और वेट करना चाहते हैं। ये सब आपका परफॉर्मेंस है। रिटर्न रेशियोज एंड वैल्यूएशन में आपके बैंकिंग के नंबर्स, सॉरी नॉट द बैंकिंग, रिटर्न रेशियोज आपके बैलेंस शीट के नंबर्स में दिखाई पड़ता है। बहुत सारे रिटर्न रेशियोज में आप सब टर्नओवर देखिए, उनके वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी एंड ऑल देखिए। वैल्यूएशन में सबसे बहुत कॉमन चीजें हैं, पी हो गया आपका, पीबी हो गया, तो इस तरीके की चीजें आप एक बार देख सकते हैं। इन सब में बहुत एम्बिग्यूटी होती है, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ इनका एक एवरेज रेट उठाइए लॉन्गर हॉरिजॉन का, उस लॉन्गर हॉरिजॉन का जो एक एवरेज नंबर है उसको करंट से कंपेयर करिए। अगर कहीं पे भी आपको एवरेज नंबर से जो करंट का नंबर है वो कहीं पे भी नीचे दिख रहा है, तो इसका मतलब यू आर एट द राइट पिक, और वो आपको इजीली अच्छे रेट्स पे अवेलेबल है। वो सीधा सॉर्टेड वैल्यूएशन का तरीका ये आप मान के चलिए कि जहाँ पे आप बहुत मेहनत नहीं करना चाहते हैं, पर इस तरीके से इसको अगर देख लेते हैं तो ये आपको एक रीजनेबल उस पर मिल जाएगा। दीज आर द अगेन बेसिक थिंग्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस एंड ऑल के लिए। एंट्री एंड एग्जिट टाइम बहुत क्रूशियल होता है मार्केट में, आपके टारगेट्स के अकॉर्डिंग।
आप अगेन कोई चीज 100% प्रॉफिट पे बुक करना चाह रहे हैं, 50% प्रॉफिट पे बुक करना चाह रहे हैं, दैट इज अगेन योर इंडिविजुअल कॉल, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज होती है कि बहुत हाई वैल्यू, आप कितनी भी वर्किंग कर लें, अगर आपने गलत वैल्यूएशन पे कोई स्टॉक उठाया है या इन्वेस्ट किया है, तो आप आपकी रिसर्च का कोई मतलब नहीं। रिसर्च आप करके उसको उस रेट पे उठाइए जब आपको लगे कि नहीं हाँ ये वैल्यूएशन वाइज भी सही है, तो इसको बोलते हैं कि आप प्रोफेशनली बहुत अच्छे लेवल पे उस स्टॉक को पिक कर रहे हो। अगर हाई वैल्यूड पे आप किसी चीज को ऑलरेडी महंगा खरीद रहे हो तो उससे और कितना महंगा होगा, वो नहीं होगा। तो ये चीज देखनी चाहिए और बहुत हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को अवॉइड ही करना चाहिए। अगेन अब ये पॉइंट आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी टाइप और यू कैन से कि कौन से सेक्टर्स को कि कौन से रेशियोज हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो डेफिनेटली उनके पीयर्स के साथ बेसिकली जब आप पीयर कंपैरिजन करें कि आउट ऑफ दीज फोर्स लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर बजाज फाइनेंस और फिनसर्व और चोला फाइनेंस, तो इनका इन सबका आप चेक करेंगे तो ये इनका आप चेक करिए कि ये पीबी कितना है। तो इन तीनों में सबका जिसका लीस्ट पीबी होगा दैट आर अवेलेबल एट गुड वैल्यूएशन। तो इस तरीके की चीजें आप कैसे चेक कर सकते हैं। पी आपको आईटी कंपनीज में चेक करना चाहिए, इंजीनियरिंग वाले में आपको ऑर्डर बुक के हिसाब से देखना चाहिए, फार्मा में आपको मार्केट कैप सेल्स कितना कर पा रही है, ये सारी चीजें देखनी है। लाइकवाइज आप ये सारी चीजें कर सकते हैं चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। नाउ अगेन बात करते हैं कि बहुत अब ये अब जैसे मैंने आपको बताया कि एनएससी एंड बीएससी पे अराउंड 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, तो उनमें से उन सबका एनुअल रिपोर्ट मंगा के पढ़ना इज अ वेरी टास्की थिंग। तो ये आपकी सारी साइट्स हैं जो फाइनेंशियल की डिटेलिंग आपको चाहिए कि बैलेंस शीट, रेशियोज, जो रेशियोज की मैं यहाँ पे बात कर रही थी, ये शॉर्ट एनालिसिस से रिलेटेड क्या चीजें हैं, वैल्यूएशन, परफॉर्मेंस, रिटर्न रेशियोज, इस तरह आपको किसी भी कंपनी का चाहिए होगा तो जस्ट गो फॉर दीज साइट्स। यहाँ पे आप इन पे पिक करेंगे, जैसे ही वो आपको साइट्स पे आपको हर कंपनी की डिटेलिंग ये आपको दिखा ही देगा। मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ओके, इट इज नॉट वर्किंग। सो नाउ टेक्निकल, अब टेक्निकल की जब बात करते हैं, जो हमने भी आपको बताया था कि जो अब कुछ ट्रेडिंग स्टाइल्स होती हैं लाइक प्राइस एक्शन, जिनको स्विंग ट्रेड करना है या इंट्राडे ट्रेड करना है, या यू कैन से पोजिशनल भी कई बार हम इसमें इसके थ्रू जा सकते हैं। तो ये आपको टेक्निकली, ये आपको कंपनी का ये ऐसे चार्ट दिखाती हैं कि चार्ट में क्या है कि, और ये वॉल्यूम भी कि क्या वॉल्यूम आ रहा है, क्या प्राइस है। ये टेक्निकल चीजें हैं, ये आप देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 5% का 10% का मूव कैसे कैसे बैठ रहा है। और वो चीज आप, ये वाली ट्रेडिंग की जो स्टाइल है थ्रू विद दीज साइट्स, आप यहाँ से इजिली कर सकते हो। द लास्ट स्लाइड इज कोर्सेज। NISM बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, ये अगर आप कोई भी करना चाहें। अब अगेन इनकी फी अराउंड आपकी सारे कोर्सेज के अराउंड अंडर 5K ही है। एलिजिबिलिटी सारे ही ग्रेजुएट्स कोई भी कर सकते हैं, सो वी आर एलिजिबल। म्यूचुअल फंड एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड यहाँ पे हम एज अ प्रोफेशनल उस चीज को नहीं कर सकते हैं। आई एम श्योर आप सबको ये चीजें पता होंगी। और एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, जस्ट लाइक कि आप सिर्फ एक बार फर्स्ट स्टेप में आप इसको रजिस्टर कर लीजिए, सेकंड में वो आपको मॉड्यूल्स दे देंगे, आप मॉड्यूल्स को आप स्टडी कर लीजिए, जितना भी टाइम लगा के आप प्रिपेयर करना चाहते हैं आप उस चीज को प्रिपेयर कर लीजिए, एंड लास्टली एक डेट पिक कर लीजिए। आपके पास वो ऑप्शन रहता है, एक डेट को आप चूज कर लो कि हम इस दिन अवेलेबल हैं एग्जाम देने के लिए, और यू आर रेडी और प्रिपेयर्ड इनफ टू गिव द एग्जाम ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, देन गो फॉर द एग्जाम। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। सो दिस इज ये आपके अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। ये आप करना चाहो तो आप डेफिनेटली सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हो। ये जो आपका ये जो आपका NISM है, ये आपका सेबी एफिलिएटेड है,
और ये जो NCFM है ये आपके NSE एफिलिएटेड कोर्सेज होते हैं। दीज आर द, ये आपके एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं जो मैंने मेंशन आउट किए हुए हैं। इसमें आपको फाउंडेशन लेवल और एक मिडिल लेवल का भी, उससे थोड़ा सा मॉडरेट हाई वाले लेवल के भी एग्जाम्स हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एडवांस लेवल बताया। अगर आप बेसिक्स में जाना चाहें देन यू कैन गो फॉर दीज courses. So this is it. Hello. So any queries you can ask. अजिता, चैट बॉक्स में एक क्वेरी है, आप देखोगे? Yeah. मैं पढ़ के बताऊं? नहीं, समय देखती हूँ। सर मुझे क्वेरीज नहीं दिख रही, आप बता दीजिए क्या है। जस्ट अ मोमेंट। मैं बता रहा हूँ। This is from Pratham Agarwal. Can प्रथम, you ओके। हाँ ठीक है, ले लो अनु, ले लो। can you suggest any course for getting hands on technical analysis course? Is CFP a good option after CA? See, CFP is basically financial planning thing, जहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को या किसी को भी रिटायरमेंट प्लान हो गए, आपके एजुकेशन प्लानिंग को आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट पार्क कर सकते हैं, सो वो सारी चीजें आपकी CFP के जो मॉड्यूल होता है वहां पे कवर किया जाता है। इफ यू वांट टू परस्यू यू कैन डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज एज अ CA हम लोगों को ये चीज अलाउड नहीं होती है। आई मीन दिस इज समथिंग इररिलेवेंट, बट हाँ CFP इज अ गुड ऑप्शन। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग वाली एडवाइजरी में आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आई थिंक 3 से 4 मॉड्यूल है इस पे, और उसको आप जस्ट रीड आउट करके पढ़ के आप कर लीजिए। अच्छा छोटा ड्यूरेशन का कोर्स है और ये डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपका इंटरेस्ट है और आप वो चीज परसीव करना चाहते हैं, देन बिकॉज आपको डिटेल में इंश्योरेंस के प्लान, यूलिप फंड्स, नॉन यूलिप फंड्स, आपके हेल्थ प्लान, टर्म प्लान, ये सारी चीजों की बहुत, रिटायरमेंट प्लान, ये सारी चीजें आपको प्लान आउट करनी होती है वहां पे। सो दिस इज वन, एंड द अनदर इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए आपके NISM में ही डेरिवेटिव से रिलेटेड कोर्सेज हैं जो अगेन वही शॉर्ट ड्यूरेशन वाले हैं कि वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ, और वहां पे आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंग आप उसमें प्रिपेयर करिए और पिक एनी डेट फॉर द एग्जाम, और वो चीज आप कर सकते हो। बट इट इज ऑन द NISM पे डेरिवेटिव करके एक कोर्स है, यू कैन गो फॉर दैट। अजिता, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी। जैसे बहुत से लोग जो फ्यूचर में डील करते हैं, तो दो इट इज रिलेटिंग टू पार्टली विद अकाउंटिंग एंड पार्टली विद इनकम टैक्स एज वेल। जैसे मैंने एक फ्यूचर खरीदा या मैंने इंट्राडे ट्रांजैक्शंस किए, तो उसमें मेरे को जो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टर्नओवर कौन सा होगा, क्या टर्नओवर होगा? मान लीजिए मैंने एक 100 रुपए का शेयर खरीदा इंट्राडे में, 120 का बेच दिया तो 20 रुपए मेरे को गेन हुआ। दूसरा ट्रांजैक्शन मैंने किया कि मैंने 100 रुपए का खरीदा और 70 रुपए का बेचना पड़ा, 30 रुपए का लॉस हुआ। जी सर, तो इसमें एक्चुअली ऑप्शन का जो टर्नओवर कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया है वो हमारी बॉडी ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि उसको कैसे करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बाय सेल का नहीं देखते हैं। इसमें क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम आपने जो भी पे किया है प्लस आपने कितनी लॉट बाय करी, वो आपकी परचेज वैल्यू होगी, तो वो परचेज वैल्यू को पिक करता है। बट इसमें जो गेन में होता है, अगर आपको गेन हो रहा है, पर अगर किसी स्क्रिप्ट में आपको सेल हो रहा है, शायद मैं आपको जैसे आपने बोला गेन वाले केस में क्या होगा, जो आप ऑप्शन प्रीमियम बढ़े हुए ऑप्शन प्रीमियम पे जब सेल आउट करते हैं उसको कंसीडर करता है।
सेल वाले केस में सिर्फ वो कॉस्ट को लेता है, आपके सेल वाले जो आपको लॉस हो रहा है, लॉस पोर्शन को वो छोड़ देता है। ओके, और ये फ्यूचर में can क्या I होता tell है? you? फ्यूचर में क्या होता है जो हम लोग स्पेकुलेशन जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं या इंट्राडे जी बोलते हैं, ऑप्शन तो आपने बता दिया। जी मैंने कोई इंट्राडे ट्रांजैक्शंस किए जो मैं बता रहा था, तो उसमें टर्नओवर का ऑडिट के पर्पस से क्या लिमिट रहती है? टर्नओवर किसको मानते हैं? सर 1 CR की लिमिट है ऑडिट के लिए। अगर आपका जो टर्नओवर एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल आपको टर्नओवर निकालना है, अगर आपका ये टर्नओवर उसमें आपके खर्चे एंड ऑल सारे ऐड ऑन हो जाते हैं, 1 CR के ऊपर जाता है, देन आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कराना पड़ता है। तो ये रूल होता है ऑडिट का। ठीक है, इसमें टर्नओवर थोड़ा सा अगर आप बता दीजिए। जैसे मैंने कहा ना, 100 रुपए का मैंने एक फ्यूचर खरीदा और उसको मैंने 120 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को 20 रुपए का गेन हुआ। दूसरा मैंने एक फ्यूचर खरीदा 100 रुपए का, जिसको 70 रुपीज में सेल किया, तो देयर इज ए लॉस ऑफ 30 रुपीज। तो माई टर्नओवर इज 30 + 20 50। सर आपने अगर 100 का ये जो 20 का आया, तो ये आपका 120 वाला एक तो टर्नओवर में ऐड होगा, जो आपने जो चीज 120 में बेची है, इनटू लॉट साइज, जो भी आपका लॉट साइज लेट्स से 1 ही रहा है, अगर 1 लॉट रहा है तो 120 रुपए, प्लस ये आपकी कॉस्ट वाली जो 100 पे आपने खरीदी थी 70 पे बेची, तो इसमें आपकी 70 ना लेके 100 ली जाएगी, तो आपका टर्नओवर आपका हो गया 220 रुपए। ऐसा होता है। अच्छा, हाँ मतलब जी, मतलब लॉस डिफरेंशियल नहीं पोर्शन लेंगे? को नहीं, डिफरेंशियल नहीं लेंगे? नहीं, अच्छा, ये आपका टर्नओवर इस तरीके से कंप्यूट करते हैं। चलिए, ओके, ठीक है। बस यही मेरे दिमाग में एक क्वेरी थी। थैंक यू सो सर मच। एक क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑडियंसेस, किसी ने पूछा है कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन, लेट मी गो थ्रू दिस, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, व्हिच इज प्रेफर्ड एंड व्हेन। ओके, अगर आपको टाइम डिके का एडवांटेज चाहिए है, देन यू गो फॉर द सेलिंग। पर ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको थोड़ा सा हैवी अमाउंट, लाइक लाख रुपए के अप्रॉक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो सेलिंग वाला, बिकॉज वहां पे एक आपको सिक्योरिटी के लिए वो फंड चाहिए होता है। अगर आपके पास वो आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। और वेन की जब बात करी जाती है, तो ये आपको जो टाइम वैल्यू डिके का क्या होता है कि जैसे जैसे पास आता है वो ऑप्शन प्रीमियम डिके करता है, तो आप 3 से 4 महीने की बाद की कोई एक्सपायरी कोई लॉट सेल कर दीजिए जो आपको लग रहा है कि नहीं बढ़ेगा जो स्टॉक्स, और उसमें टाइम डिके का जो बेनिफिट है वो आपको इजीली मिलेगा। तो इन दैट सिनेरियो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, बट उसके लिए आपको 1.5 लाख का मिनिमम मार्जिन लेके चलना होता है। ऑप्शन बाइंग की अगर आप जब भी आपको लग रहा है कि मार्केट में अच्छा मूव आने वाला है या एक स्पाइक मिलने वाली है, तब डेफिनेटली बाइंग में जाना चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए, क्योंकि वहां पे आपको आप अपसाइड के लिए मूव, आप बुलिश हो किसी ट्रेंड के लिए, तो आपको डेफिनेटली बुलिश वाले फेज में आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए। बियरिश या न्यूट्रल वाले फेज में आपको ऑप्शन सेलिंग में जाना चाहिए। वहां पे आपको डिके का बेनिफिट आपको ज्यादा से ज्यादा आप लेना चाहते हो, तो आप थोड़े से लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका, डिस्कशन रहा, एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, और पूरा समय हो गया, एंड बिल्कुल नेक टू नेक आपने टाइम के हिसाब से अपने को देख के अपना प्रेजेंटेशन को खत्म किया है। थैंक यू सो मच। नाउ फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, अनुश्री, ओवर टू अनुश्री। So thank you for the session, and I would like to welcome Tulika ji for the thanks of vote. Greetings to everyone gathered here. I consider this as my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who have really worked hard to make this webinar possible. On behalf of Central Indian Regional Council of Institute of Chartered Accountants of India, I extend a hearty vote of thanks to our special guest, CA Atul Agarwal sir, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Sir, today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely encourage us in all our future endeavors. Our special mention to our respected chairman, sir, CA Atul Mehrotra sir, for being the catalyst that stimulated us to do our best. Sir, I would like to thank you for this new initiative taken by you in the form of WOW.
Women on Wednesday to encourage and bring together industry members who are dedicated to findings, sharing, and encouraging the voice of female chartered accountants. As this group grows, we continue to look for new female voices to discover, share, and elevate in our weekly webinars and newsletters. Exchanging knowledge and skills always provide new paths and directions to all. I want to thank our distinguished speaker, CA Ajita Singh Ji, for enlightening us with investment opportunities in capital markets, mutual funds, and other financial instruments, and also for briefing us about various courses offered by NISM and NCFM. Your deep and intellectual way of imparting knowledge had added to the glory of the event. Ma'am, today we all have gained a lot of information which will truly help us to take decisions regarding our investment strategies. We have no words to offer our gratitude for your valuable presence here, ma'am. You gave deep insights into the topic and revealed some of the very interesting facts. With deep sense of appreciation, we like to thank our chairman, CA Atul Mehrotra sir, vice chairman, CA Kishore H. Bardia sir, secretary, CA Lokesh Maheshwari ji, treasurer, CA Rajiv Gupta ji, chairman Sakasa, CA Amit Kumar ji, program director, CA Sharad Jain ji, program conveyor, CA Akash Bargoti ji, program moderator, CA Anushri Gupta ji, for their untiring efforts. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would also like to thank all the respective representatives who have blessed us with their presence here. I'm thankful to all the staff for their efforts in arranging this virtual webinar. Everyone have been beautifully added to the glory of this event. I'm gratified to all the audience for joining us here. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much. Bye-bye.